मनीष जी, मैं कुछ बोलूं? जी जी प्लीज बोलिए सर। बोलिए सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, जय जी बोलना चाह रहे थे कुछ? नमस्कार एवरीबॉडी। जी जी जी, आप बोलिए सर। कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ सर, एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार। थैंक्स फॉर बियरिंग सर एवरीबॉडी, आई एम वेरी थैंकफुल। आप दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, थैंक यू। It's been more than 4 decades since Shriram Minerals Group began mining and working with Butch Clay and rooted a solid foundation for a company that today is one of the leading extractor and producer of kaolin and silica sand in India. Shriram Minerals Group is synergetic through its multiple units spread across mineral-rich belt of Kutch that are the part of business integration and are value addition to existing mining. With honesty and solid spirit of entrepreneurship, the group is growing vigorously and marching towards a golden future, focusing on its people, the respect for the environment and research-centric approach. Shriram Minerals Group is committed to excellence, the accessibility of natural resources and an aspiration for innovation are in urge to provide refined and purest kaolin and silica to the world. I work for Shriram Minerals. Shriram Minerals Group understands that the company has a strong base, right mining lease and has right people. One group, one family of individuals from diverse background and aligned mission. A family that take active participation at every front and are strengthened by a series of unquestionable values like fidelity, ethics, commitment and care. Our people are willing to train, retrain and learn, transforming single product mining into a connecting product line. Just like every other responsible community, we seek advice from our internal and external stakeholders who open us up to new ideas that help us take mining and safety application to the next level that benefits Mother Nature and mankind. हम श्रीराम मिनरल्स ग्रुप में कंपनियां तो सुबह नॉर्मल से रोजी रोटी दे देता है। Located in geologically substantial land of Butch, we possess clay mines in more than 5 lakh square meter area in Nadapa and Paddar region and an ISO 9001-2008 certified processing plant at Madhapur. We constantly upgrade our developed technology, machineries and refining processes at Shriram Minerals Group, where we annually manufacture more than 5 lakh metric tons of kaolin and silica sand, along with highly processed alumina clay, which constitutes major portion of entire production of Butch clay bell. At Shriram Minerals, our idea is to remarkably establish Butch on the geological map of the world. We have the privilege and honor of drawing world's attention towards Butch silica sand by enhancing its superior properties at Mangal Minerals, where we refine world's unique Butch sand. श्रीराम मिनरल्स द्वारा हमें रास्ता आपकी रास्ता हमारा सहयोग आपके लिए। The path to today's Shriram Minerals Group began back in 1973, when Butch was nothing more than a mere barren land. Our founder, Shri P.D. Solanki, with his love for his land and fine sense of research and geology, discovered high purity and rich kaolinite content in clay deposits near Butch, along with bentonite and few other minerals, and hence established first leased mining of kaolin at Nadapa and Paddar village in 1977, opening the doors of development in Butch and Kutch region. Soon, with his research-centric approach, he formed Shriram Minerals in 1982 to process and navigate the raw clay for ceramic industry at Madhapur. This was just a beginning, and soon he leased few more quality mines and established various processing units at Nadapa in 1987. Shriram Group became more prominent under the leadership of second generation, Mr. Manoj Solanki, who with his long vision and in-depth planning, accelerated group's growth rate and as a part of forward integration, a micronizing plant and a calcination plant
plant was set up in 2007 and 2008 and added value to existing product. With every coming generation, Shriram Group kept adding new dimension to clay mining. Under the direction of Shri Jaideep Solanki and Shri Jaimeet Solanki, Shriram Minerals Group became more versatile with remarkable expansion. In 2009, Shriram Group strengthened the product line by establishing silica sand lavication plant, Mangal Minerals, under the able direction of Shri Brijesh Gohil. श्रीराम मिनरल्स ग्रुप को हम भारत का सबसे बड़ा केओलिन और सिलिका सैंड निर्यातक ग्रुप बनाने का लक्ष्य रखते हैं। We add value to every particle that we extract from Mother Earth. If mining is important, mineral conservation and benefaction is even more important. Complete extraction is the fruit of Shriram Minerals Group. Crude China clay, lavigated kaolin, hydrous kaolin, calcined kaolin, metakaolin, refractory clay, quartz sand, silica sand, resin-coated sand, and color sand of all grades, and mesh sizes made up our product line. Shriram Minerals Group feels proud in his association with domestic and international manufacturing giants in domains like ceramics, paper and paints, fibers and cables, rubber and plastic, glass, refractory and many more. At Shriram Minerals Group, we work towards making this world economically connected and ecologically responsible. As research and development has made us pioneers with most refined products in the category, our commitment to society and the environment has cemented the solid company that we are today. We want to be a part of a better and a balanced world. Ours is an environment-conscious organization that balances industrial activity through various green initiatives like on-site tree plantation, organic farming, water conservation, etc. We believe India lies in villages and real prosperity lies in developing them. In line with our vision of environmental conservation, skill development, strengthening self-sustainable village model, encouraging Gau Samvardhan and developing farming technology, we have formed Shri Ram Krishna Trust at Kukma, where we run learning and research centers for alternative medical therapy, manufacturing innovative products from cow dung and animal waste that provides health and economic benefits to the world. We also run training centers to educate and empower farmers in organic farming and Gaushala management. Shri Ram Minerals has much to contribute in his vision to provide purest clay products, but nothing would be possible without the passion and dedication that this family showcases, giving group a new height every day. मैं एक बार applause कहूंगा श्रीराम मिनरल्स वालों के लिए, थैंक यू एवरीबॉडी, क्योंकि जो ये काम ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। कौ डंग से और ये लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाने का इनिशिएटिव। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी बोलिए सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। एक्चुअल में तो देखिए ये तो छोटी सी फिल्म है, लेकिन जो रियल जो है वो किसी को भी जिसको भी आना है मोस्ट वेलकम। ठीक है, आके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, वहां पर रहना है, सब कुछ है, सब कुछ खाना पीना सब कुछ। ठीक है, सो मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, कभी भी आओ, कभी भी। ठीक है, जस्ट एक फोन कर देना प्लीज। थैंक यू सर। आप सब आपने पेंट विजन परिवार को इनवाइट किया, अपने यहाँ बुलाया, और ये बुला इसलिए रहे कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ अगर देखना है, कुछ सीखना है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं भुज में, जिसको व्हाइट सैंड भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन इसकी बहुत पब्लिसिटी करते हैं, मैंने कल जेड भाई को बोला भी था। तो सर कच्छ में हम जरूर आएंगे सर। हमें एक चीज अभी हम लोग क्या है, वैदिक प्लास्टर भी बना रहे हैं। वेरी गुड सर। ओके, दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम काउ डंग,
और काउडंग से हम लोग अभी जो बोलते हैं इको फ्रेंडली कलर फॉर इंटीरियर, ओके तो वो भी हम लोग वो बना रहे हैं। हाँ जी सर, ये तो फिर तो मोस्ट वेलकम, बस मैं यही परिवार के लिए चाहूंगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि आपने रंगों की बात की है तो वो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। जी तो जी मैं जी समझता हूँ कि बहुत से लोग चाहेंगे आपके साथ जुड़ना, और जो जी भी जी जुड़ना चाहे आप जयेश भाई को बात कर सकते हैं, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जयेश भाई से हम लोग थ्रू मिलेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारा ओके, टॉपिक जो है, थैंक यू। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर अनिल बंसल, Director APS Minerals and Additives Private Limited, Vadodara. Possesses Doctor of Philosophy, PhD in Chemical Sciences from University of Rajasthan, Jaipur. Initially, he was professor in Engineering College and MS University, Baroda. He worked 12 years as a Senior General Manager, Technical, at 20 Microns Limited. He gained experience by working in different companies like Ruberman Limited, Birla, etc. for 8 years. His experience in the field of different minerals, white minerals, engineered minerals, and hydrometallurgy, we can say metallic and non-metallic, is vast. As he has presented paper on different forums like European Coating Show, IPA, ISPA, IPCA, etc. Has 8 international journals. Sir, अपने आप म्यूट कर लें प्लीज एक बार. Thank you. He has 8 international journals, 6 national journals, and 15 papers publication in technical conferences to his credit. He is the qualified lead auditor, for the Quality Management System QMS. तो हमारा आज सौभाग्य है कि हम डॉक्टर अनिल बंसल को दोबारा सुन पाएंगे, उनकी जो वैल्यूड लर्निंग है उनका हम फायदा उठा पाएंगे मिनरल्स के ऊपर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड इट्स वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी मिनरल्स के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं आज हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा श्रीराम मिनरल्स वालों का, जिन्होंने आज का ये सेशन को स्पॉन्सर किया, एंड एपीएस मिनरल्स का जिन्होंने सेशन दिया है और सेशन को वो भी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मतलब श्रीराम मिनरल्स एंड एपीएस मिनरल्स दोनों मिलकर आज इस शो को, आज इस सेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। पेंट विजन रियली थैंक्स टू देम, और आप सभी को आज के इस सेशन में अच्छे से अच्छा ज्ञान मिले। ओवर टू डॉक्टर अनिल बंसल। थैंक यू सर। अनिल जी। Yeah, good afternoon everyone. Manish sir, aa rahi hai awaaz? Yes sir, good afternoon sir. Yeah, good afternoon sir. First of all, thank you very much for you giving a nice this introduction, and thank you all of present here, because last time आप लोगों ने सुना, दोबारा सुनने का मौका दिया, मैं दोबारा कुछ present कर सकूं, whatever the knowledge we have, I will share with you, and different minerals, how we can use and how we can utilize in the different formulation in paints and coatings. So एक्चुअली लास्ट टाइम मनीष जी का एक वो था, सभी लोगों ने बोला था कि हम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें बता तो रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे मिनरल को सेलेक्ट किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, बट उसका रेमेडी क्या है, हम उसको कैसे, मतलब दवा क्या है उसकी। तो आज हम लोग उस सॉल्यूशन के साथ में भी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं, कॉस्ट हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो उसमें गुड क्वालिटी अलोंग विद द कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो उसी के एडिशन में है ये टुडे प्रेजेंटेशन। तो मैं प्रेजेंट करूंगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस इज अवर कंटेंट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया कि व्हाट इज मिनरल्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हाउ वी कैन टेस्टेड, कौन से मिनरल को हम कैसे टेस्ट करें, उसमें डिफरेंट लाइक कलर, ब्राइटनेस, दिस रेसिड्यू एंड ब्राइटनेस एंड पीएच एंड डिफरेंट दिस मोर हार्डनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सो मेनी प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम कि हम उनको कैसे चेक करें। नेक्स्ट ये था कि हम लोग मिनरल को कैसे सेलेक्ट करें, मतलब कौन सी बेसिस पे कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा मिनरल सुटेबल है। तो ये सिलेक्शन ऑफ मिनरल भी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया।
अभी है कि कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, अभी क्या हो गया कि गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव रहता है कि डे बाई डे मिनरल्स का क्या डिप्रिसिएशन हो रहा है, मिनरल्स कम हो रहा है, तो हम जो वॉट एवर द मिनरल प्रेजेंट इन अवर मदर अर्थ, हाउ वी कैन यूटिलाइज इन ए प्रॉपर वे, तो उसको कैसे वैल्यू एडेड करके। दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द इम्पोर्ट, वॉट एवर द प्रोडक्ट वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, तो बिकॉज इट ये क्या करता है आपका एक तो इन्वेंट्री बढ़ाता है, दूसरा आपका जो मनी है उसको ब्लॉक करता है। तो हमारा ट्राई रहता है वॉट एवर नॉलेज हम लोगों को है, और हम बीइंग ए टेक्निकल पर्सन भी हम ट्राई करते हैं कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, इम्पोर्ट जो आ रहा है मिनरल्स का या जो मटेरियल का, हम लोग उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करें अपने इंडियन प्रोडक्ट के साथ में, इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो हमारा यही मतलब प्राइम बोर्ड रहता है कैसे उसको वो किया जाए, और इंडियन प्रोडक्ट को कैसे हम लोग प्रमोट करें, कैसे यूटिलाइज करें, इससे कि अवेलेबिलिटी टाइम पे रहेगी। दूसरा, किसी को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसमें ऐड करना है तो वी कैन डेवलप अकॉर्डिंगली एंड रिड्यूस द फॉर्मुलेशन कॉस्ट। दूसरा है इसमें कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं, मतलब कैसे हम लोग उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या बेनिफिट है उनको। और उसी सीरीज में है नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, जैसे सब माइक्रोन कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज नेक्स्ट इज द कंपोजिट पिगमेंट्स है, नेक्स्ट इज हाइड्रस एंड कैल्शियम क्यूलिन, वाटर रिपेलेंट कोटिंग्स, कैसे हम लोग वाटर रिपेलेंट कोटिंग बना सकते हैं, कलर क्वार्ज है जो अपना ग्राउटिंग के लिए है, टेक्सचर पेंट के लिए है, नेक्स्ट टेक्सचर कोटिंग है। नाउ एक नया भी आता है, जिस यूएस गवर्नमेंट का भी एक कंसेप्ट है, और यहाँ अपने इंडिया में भी, कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम कैसे, अपना जो इंटरनल घर का टेम्परेचर है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो देन पीपल आर वर्किंग ऑन हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स, तो वी हैव डेवलप्ड प्रोडक्ट फॉर हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स, देन वुड प्राइमर्स, नेक्स्ट इज द वेरियर कोटिंग्स, इसमें आता है टाल्क एंड माइका आता है जो हाई एस्पेक्ट रेशियो का होता है। नेक्स्ट प्रेसिपिट वेरियम सल्फेट आप सभी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्लैंक फिक्स। Next is natural silica, and then is a precipitate silica. It works as a matting agent, and natural red oxide, and last is the wax, कुछ application like road marking paint, and next is the summary. So now we will discuss one by one. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कौन कौन से मिनरल है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मैं ओनली समरी फॉर्म में बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट इज द स्फेरिकल इन शेप होता है, pH 9 to 10 होता है, हार्डनेस 3 होता है, टाल का हार्डनेस 1 होता है, हार्डनेस स्केल में देखें, और 10 सबसे ज्यादा डायमंड का होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंपॉर्टेंट होता है 2.1 है, 2.7 है सॉरी, ऑयल 8 to 18 है, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 है। इसी सीरियल में बेराइट है। बेराइट का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है ये जो हाईएस्ट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब हाईएस्ट नहीं बोल सकते, पर हाइट साइड में होता है, इक्विवेलेंट टू लाइक TiO2 के इक्विवेलेंट होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर क्ले आता है, क्ले में हाइड्रस केओलिन एंड कैल्साइन केओलिन रहता है। फिर टाल्क रहेगा, इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, एंड माइका, एल्युमिनियम हाइड्रेट एंड अदर मिनरल्स आल्सो। नाउ द पिगमेंट स्पेसिंग, ये जो जितने भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं उनका क्या पर्पज रहता है, कैसे हम उनको यूटिलाइज करते हैं। तो बिकॉज ये जितने भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं वो क्या होता है, सब माइक्रोन होते हैं, लेस देन 1 माइक्रोन पार्टिकल साइज के होते हैं। और अपना जो भी हम सिस्टम में यूज करते हैं पिगमेंट, व्हाइट पिगमेंट एज वेल एज द कलर पिगमेंट, दे आर वेरी फाइनर। व्हाइट पिगमेंट की हम बात करें तो व्हाइट पिगमेंट में हमारा रहता है TiO2 रहता है। TiO2 पार्टिकल इज वेरी फाइनर, लाइक 0.3 0.4 D50 उनका रहता है माइक्रोन साइज। लेकिन मिनरल्स का पार्टिकल साइज जनरली देखें तो 2 माइक्रोन रहता है, 5 माइक्रोन रहता है, 10 माइक्रोन रहता है, 20 माइक्रोन रहता है। तो जो वैल्यूएडेड प्रोडक्ट है उनका हमारा पर्पज है कि उसमें पार्टिकल साइज को रिड्यूस करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाएं। तो अभी आप देखोगे इस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में द 6 माइक्रोन फिलर है, जो TiO2 को स्पेसिंग नहीं कर सकता है क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं, अभी हम किसी बड़े आदमी को बोले उनके बीच में जाके फिट हो जाओ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो आदमी उसमें जाके घुल मिल नहीं सकता है, उनके बीच में फिट नहीं हो सकता है। उसी बीच में हम उसी साइज का दूसरा कोई बच्चा भेजे तो वो बच्चा उसमें जाके फिट हो सकता है, उसमें सेट हो सकता है। सिमिलरली यही प्रिंसिपल है इसमें देखोगे तो फिलर पार्टिकल इज द बिग पार्टिकल इज 6 माइक्रोन पार्टिकल साइज का है। बाकी का देखो तो लेस देन 1 माइक्रोन लाइक 0.3 0.4 माइक्रोन साइज का है। तो उसमें स्पेसिंग नहीं कर पा रहा है, TiO2 को स्पेसिंग नहीं कर पा रहा है। दूसरी फिगर में देखोगे तो 2 माइक्रोन फिलर का है। 2 माइक्रोन सम एक्सटेंट वो स्पेसिंग का काम करता है, उसको स्पेसिंग करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाता है। लास्ट फिगर में देखोगे द लेस देन 1 माइक्रोन पार्टिकल साइज फिलर, दिस मींस पार्टिकल साइज इक्वल और स्लाइटली ग्रेटर देन द पार्टिकल साइज ऑफ TiO2। तो ये क्या है, इसमें स्पेसिंग का काम करता है
और ये प्रॉपरली स्पेसिंग कर रहा है इसको, तो वी कैन से द रिड्यूसिंग एक्सटेंडेड पार्टिकल साइज एंड इम्प्रूव पिगमेंट स्पेसिंग और डिस्पर्सन। तो ये मेन जो इसमें ये रहता है कि हम उसको कैसे स्पेसिंग करें, कैसे, तो जितने भी फाइनर फिलर हैं वो स्पेसिंग का काम करते हैं। इसीलिए कई बार मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि TiO2 को हम बोलते हैं कि TiO2 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। एक्चुअल में उसका रिप्लेसमेंट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि TiO2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.7, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस इट। बट अबर प्रोडक्ट ये क्या करता है, TiO2 का डिस्पर्सन करता है, स्पेसिंग करता है। सो दैट्स वाई इन फॉर्मुलेशन में जो 30-40% TiO2 अनयूटिलाइज रहता है, इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, वो जो ये फाइनर फिलर है उसको यूटिलाइजेशन इंक्रीज करते हैं और इस वजह से उसका डिस्पर्सन बढ़ता है और उसका 100% परफॉर्मेंस हमको मिलता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि TiO2 कितना रिप्लेस हुआ, पर एक्चुअल में रिप्लेस नहीं होता है, उसका कितना यूटिलाइजेशन हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। सो इसी के सीरियल में पहला इसमें प्रोडक्ट का डिटेल दिया हुआ है, सम ऑफ द स्पेशलिटी प्रोडक्ट, सम ऑफ द इंडस्ट्रियल मिनरल्स। इंडस्ट्रियल मिनरल्स जो नॉर्मल होते हैं, जिनमें क्या होता है कि लाइक 10 माइक्रोन बोल सकते हो, 5 माइक्रोन बोल सकते हो, 2 माइक्रोन बोल सकते हो, 20 माइक्रोन बोल सकते हो, 500 मेस बोल सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल मिनरल्स। इसमें आता है फर्स्ट जैसे टाल्क होता है जिसको हम सोफ्ट स्टोन भी बोलते हैं, कैल्साइट है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, व्हाइटिंग है, क्वार्ज है जिसको हम सिलिका भी बोलते हैं, चाइना किले है, कैल्साइन केओलिन है, बेराइट है, रेड ऑक्साइड हुआ, ग्रेन्स हुए मार्बल और सिलिका के जो बोलते हैं, फिर फेल्सपार। इधर हम लोगों ने कुछ एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जैसे स्पेशलिटी प्रोडक्ट, वो क्या करेंगे, वो इसमें फॉर्मुलेशन में यूज करके उससे क्या हम प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कॉस्ट तो रिडक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन पहली चीज है क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम प्रॉपर्टी गेन करें। तो इसमें फर्स्ट है द पिगमेंट which can be used for TiO2 replacement, or we can say the TiO2 like a spacing. Next is the blank fix. फिर उसके बाद में आता है this APS gloss is the final hydrous kaolin, then synthetic aluminum silicate, then hydrophobic filler for water repellency, and submicron calcium carbonate, and then is the color quartz or color silica. मनीष जी स्लाइड बराबर आ रहा है ना थोड़ा? हेलो, ठीक है सर, बिल्कुल ओके ना? हाँ सर, सही है। हाँ, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हम लोग बात करें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उस दिन बताया वो हार्डनेस 3 होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या है, दिस द एक्चुअल में केमिकल नेम इज द कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अंदर में 2 टाइप्स के कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, वन इज नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड में द प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कई बार कुछ कस्टमर बोलते हैं कि नहीं मैं कैल्शियम कार्बोनेट यूज करता हूं, कैल्साइट यूज नहीं करता। कुछ बोलते हैं मैं कैल्साइट यूज करता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज नहीं करता, बल्कि दोनों सेम ही है। दोनों का केमिकल नोमेनक्लेचर इज द कैल्शियम कार्बोनेट, ओनली इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे कौन कौन से आते हैं, इसमें सबसे सॉफ्ट आता है चौक बोलते हैं, जिसको व्हाइटिंग बोलते हैं, चौक होता है। उसके बाद में लाइमस्टोन आता है, फिर उसके बाद में इसमें हमारा क्या बोलते हैं मार्बल आता है, कैल्साइट आता है। ये सब हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट। पीसीसी में भी कई बार 2 कैटेगरी लोग बोलते हैं, ACC मतलब एक्टिवेटेड कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी यहाँ हम लोग ऐसे दिया हुआ है, जैसे इम्पोर्टेड लाइमस्टोन जो होता है, जो डिफरेंट कंट्री से आता है लाइक वियतनाम, इजिप्ट, बिकॉज इट इज द प्योरेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज हैविंग द ब्राइटनेस ऑफ लाइक 96 से 97 एंड पार्टिकल्स है, ये डिफरेंट पार्टिकल साइज में रहता है, 2 माइक्रोन भी रहता है, 1 माइक्रोन भी रहता है, 3 माइक्रोन भी रहता है। तो हियर दिस अवर ग्रेड इज APS08 इज द पार्टिकल साइज D50 1.2 से 1.4 एंड हियर वी हैव डिस्कस्ड द डोमेस्टिक ग्रेड ऑफ कैल्साइट। हियर इज ब्राइटनेस लाइक इसमें 2-3 टाइप्स के रॉ मटेरियल आते हैं, अंबाजी बेस आता है, मकराना बेस आता है। So considering these factors, this brightness ranges from 92 to 96%, and it is available in the different grades. Like a particle size, on the basis of particle size, this it is like a 2 micron, 10 micron, 20 micron, and like a 400 mass. तो डिफरेंट पार्टिकल साइज, डिफरेंट मैथ साइज के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। डिफरेंट ग्रेड डेवलप किए हैं कि कौन कौन सा पार्टिकल साइज का है, क्या उसका बेनिफिट होता है पार्टिकल साइज रिड्यूस करने से। सिमिलरली डोलोमाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड इट्स ब्राइटनेस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 91 to 95 होता है। और इसमें भी ऐसे होता है जो बहुत ज्यादा फाइनर नहीं होता है, उसको हम लाइक 300 मेफ, 240 मेफ, 200 मेफ हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट द व्हाइटिंग।
व्हाइटिंग एक्चुअल में 2 रीजन में अवेलेबल रहता है। हम जनरली जो प्योर व्हाइटिंग होता है वो पोरबंदर व्हाइटिंग होता है, लेकिन उसका क्या है कलर थोड़ा वैसा रहता है, येलोइश रहता है। इसीलिए क्या है कि इसमें राजस्थान व्हाइटिंग भी चलता है, तो हमने इधर राजस्थान वाला व्हाइटिंग कंसीडर किया है। हियर इज ब्राइटनेस इन 93 से 95 एंड दिस इज कॉल्ड द व्हाइटिंग चॉक। नेक्स्ट इज द सब माइक्रोन कैल्शियम कार्बोनेट, जो बताया कि ये द पार्टिकल साइज, जैसे जैसे पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है तो इसका आप देखोगे तो ग्राइंडिंग में इस तरीके से होता है, स्फेरिकल होता है, ये स्लाइटली निडल टाइप में कन्वर्ट होना शुरू होता है, इसकी वजह से ओपेसिटी देता है, और बहुत फाइनर होने की वजह से ये ओपेसिटी देता है, ग्लॉस भी देता है। ग्लॉस जैसे अपन फाइनर सॉरी ये अपन जो हाई ग्रेड पेंट्स बनाते हैं, लाइक टेक्टोसाइन हुआ, रॉयल हुआ, उस टाइप के प्रोडक्ट में इसको यूज करते हैं जितने भी हाई ग्रेड पेंट्स हैं। और ये वर्क करता है ये स्पेसर का, बिकॉज इसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 माइक्रोन पार्टिकल साइज है, so it works as a spacer and it gives the excellent dispersion in gloss, reduction of TiO2 content and reduce the formulation cost. तो जितने भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं उनका एक आप देखोगे तो वो क्या है कि TiO2 रिप्लेसमेंट करते हैं, इसलिए कॉस्ट बेनिफिट तो देते ही हैं, बट हमारा मेन फोकस है क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे बनाएं, औरों को हम कैसे कॉम्पीट करें, दैट इज अवर टारगेट। तो इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, एक्सेलेंट डिस्पर्सिबिलिटी होता है, बिकॉज इट्स ए कैल्शियम कार्बोनेट, सो इट्स हैविंग हाई ब्राइटनेस एंड हाई व्हाइटनेस, लो येलोनेस होता है, येलो इंडेक्स इज वेरी लेस, हाई ओपेसिटी होता है, सुटेबल फॉर ग्लॉसी कोटिंग्स, जहां अपने को ग्लॉसी कोटिंग्स बनाना है वहीं पे हम सब माइक्रोन यूज करें, क्योंकि कॉस्टिंग में फिर इश्यू आता है। एंड रिड्यूस द फॉर्मुलेशन कॉस्ट, इट गिव द एक्सीलेंट ग्लॉस, आउटस्टैंडिंग वेट स्क्रब रेजिस्टेंट, वेट स्क्रब भी इससे इंप्रूव होता है, और नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रियोलॉजी, बिकॉज इसका ऑयल एब्जॉर्प्शन और वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसलिए रियोलॉजी पे कोई ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं आता है। ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हाई सीन वाटर बेस्ड कोटिंग्स हुआ, इंडस्ट्रियल कोटिंग हुआ, इसका एक कोटेड वर्जन भी आता है, इसको लोग पाउडर कोटिंग में भी यूज करते हैं, कई जगह पे अभी इसको क्या है बेरियम सल्फेट के रिप्लेसमेंट में भी यूज करते हैं कोटेड वर्जन को, तो इसलिए इंडस्ट्रियल कोटिंग, पाउडर कोटिंग, कॉयल कोटिंग, कैन कोटिंग, उसमें भी यूज होता है। प्रिंटिंग इंक में काफी यूज होता है, एंड एडिसिव सीलेंट में, बिकॉज एडिसिव सीलेंट में इसमें रियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होता है, फाइनर होने की वजह से स्लाइटली विस्कोसिटी इसमें बिल्डअप होता है, इसलिए एडिसिव सीलेंट में भी इसको पीपल यूज करते हैं। Here you can see the particle size and brightness. Brightness is almost like a 96, 97, and particle size less than 1 micron. Particle size is 0.8, and oil absorption, and you can see the purity. Purity minimum is the 98%. It's having like a 99 or more than 99 sometimes. And it is available like a 25 kg packing, and you can see also the electron microscope. Are you talking about the brightness or whiteness? एक्चुअल में इसमें दोनों कंसीडर किया है, इसका ऑलमोस्ट ब्राइटनेस वाइटनेस दोनों सेम ही होता है, वाइटनेस 1 यूनिट ज्यादा होता है, जैसे ब्राइटनेस इन केस ऑफ लाइक इंपोर्टेड कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ब्राइटनेस इज लाइक 96, तो वाइटनेस इज लाइक 97। सॉरी, अंडर वाइटनेस वैल्यू, दिस इज लाइक CI वाइटनेस हम लोग कंसीडर करते हैं, CI वाइटनेस, जिससे वाइटनेस लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, और ब्राइटनेस में जनरली ISO ब्राइटनेस हम लोग मेजर करते हैं, उसी को कंसीडर करते हैं। ये हम डिफरेंट पेंट फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक प्रीमियम एंटी एमल्सन पेंट है, नीचे कुछ हाँ प्योर एक्रिलिक एमल्सन जैसे लाइक 30, ये गाइडलाइन फॉर्मुलेशन है, इट नॉट ए एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन, सो हम लोग क्लेम नहीं कर सकते कि भाई फॉर्मुलेशन गलत है या सही है, हमारी नॉलेज के हिसाब से हम लोग इसे थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि कैसे फॉर्मुलेशन हो सकता है फिलर का ओनली, बट एवर द अदर एडिटिव यू कैन टेक एज पर योर दिस कन्वीनियंस। TiO2 like 20% होता है, APF tax is the calcine kaolin is higher, this is the very finer calcine kaolin is 2%, high gloss is the submicron calcium carbonate 10%, and APS gloss is the very finer this hydrous kaolin and is the 4%, is like a royal similar to royal paint, so it is the formulation. And say, at right inside you can see that like a sign, Tector sign like a, so here is a styrene acrylic emulsion is 10%, you can see TiO2 almost 6%, calcine clay 5%, high gloss is 20 to 25%, and gloss is the hydrous kaolin is the approximate 10%. And similarly in premium interior emulsion paint में जहाँ पे TiO2 content 14-15% रहता है, वहाँ पे people are using this high gloss 10% and this 5%. The exterior emulsion paint में this here is the one important product is the APS slide, is the surface modified हाइड्रोफोबिक फिलर है,
जो आपको वाटर रिप्लेंसी देता है, और दूसरा इसमें फंगस एल्गी डेवलप नहीं होने देता है, उसका हम डिस्कस करेंगे, वो उसमें 7% अप्रोक्सीमेट। एंड सिमिलरली पीवीसी, मीडियम पीवीसी जो होता है तो उसमें TiO2 लाइक 5-6% होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने TiO2 3%, पिगमेंट 3% लिया है, कैल्साइन क्यूलिन 2 माइक्रोन भी ले सकते हैं इसमें, और चाइना के लिए और टाल्क भी कुछ लोग अलग अलग यूज करते हैं, कोई चाइना के लिए यूज करते हैं, कोई टाल्क यूज करते हैं, दैट इज द लाइक ए गाइडलाइन फॉर्मुलेशन। वी कैन सी द फिलर कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट पेंट्स। जो सब माइक्रोन कैल्शियम कार्बोनेट है उसी का सरफेस मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, दिस द सरफेस ट्रीटेड सब माइक्रोन इज द स्टेरिक एसिड से कोटेड रहता है, और ये अभी क्या है कि वेरियम सल्फेट के रिप्लेसमेंट में लोग यूज कर रहे हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशन इट गिव द अगेन इट गिव द वेरी गुड डिस्पर्सन, वेरी गुड ग्लॉस एंड वेरी गुड ओपेसिटी, so it is the submicron calcium carbonate. Next important product is the APS pigment, is the white pigment opacifier. जो अपन बात कर रहे थे कि TiO2 का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हियर वी हैव ट्राइड टू मेक ए कंपोजिट, जिसमें क्या है ऑलरेडी पहले से ही हम लोग ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन हम लोगों ने TiO2 ऐड किया हुआ है, जिससे उसका TiO2 का डिस्पर्सन हो जाता है। तो व्हाइट पिगमेंट ओपेसिफायर इज इंजीनियर्ड पिगमेंटी प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग, द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इज। इसके क्या क्या बेनिफिट है, इससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कंपोजिट है उसका बढ़ जाता है, स्पेसिंग TiO2 का ज्यादा होगा, लूज TiO2 हो जाता है, जिससे डिस्पर्सन इज वेरी गुड, एंड इट क्रिएटिंग द एयर वॉइड्स एंड इंक्रीज द लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग बढ़ाएगा, ओपेसिटी बढ़ाएगा, एंड ग्लॉस भी इसमें ज्यादा देगा। ये दिस इज द एक्चुअल में टेक्नोलॉजी, हियर यू कैन सी इसमें ऊपर साइड लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखोगे द 2 TiO2 पार्टिकल, ये दोनों TiO2 पार्टिकल आपस में देखो जुड़े हुए हैं, तो ये वाला पार्ट दोनों का यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कंपोजिट बनाया है कि TiO2 पार्टिकल इज कवर्ड बाय द फिलर पार्टिकल्स। तो इनमें क्या किया है, दोनों TiO2 पार्टिकल को सेपरेट किया है, दोनों का ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन किया है, दोनों का इस तरीके से कंपोजिट बनाया है, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट टेक्नोलॉजी, और ये इज द कॉम्बिनेशन ऑफ TiO2 एंड अदर फिलर्स। तो हियर यू कैन सी इन रेगुलर TiO2 एंड कंपोजिट TiO2, इसका स्कैटरिंग दे सकते हैं, इसका ओपेसिटी देख सकते हैं। तो इसका जो रेगुलर TiO2 है उससे ज्यादा उसका ओपेसिटी मिलता है, उससे ज्यादा उसका ग्लॉस मिलता है, बट यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर फॉर्मुलेशन के हम कितना उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी वेयर दिस पिगमेंट इज वर्क। So we have these 3 different grades. This APS pigment 90, it's having the very good brightness, whiteness, 95, 98, and particle size again you can see the 0.5 to 0.8. It is mainly suitable for water based as well as the solvent based paint. बट कुछ एक कस्टमर को जो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देन वी हैव टू सजेस्ट द APS से ऑप्टिकल आर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द वेरियम सल्फेट and it gives the very good this specific gravity also and last one is the UV resistant. इसमें क्या होता है कि this pigment gives the TiO2 replacement as well as the UV resistant. क्या होता है, कई बार आप देखोगे कि जैसे अपना वॉशिंग मशीन होता है या और भी आर्टिकल होते हैं जो व्हाइट होते हैं, वो बाहर पड़े रहते हैं, तो देखा होगा धूप में उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसमें ये व्हाइट का येलो हो जाता है। येलो क्यों होता है कि यूवी लाइट उसमें प्रेजेंट रहती है, सनलाइट में यूवी रेज प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो टर्न्स हो जाता है व्हाइट कलर येलो कलर में। तो इसलिए वी हैव एडेड सम ऑफ द एडिटिव्स व्हिच वर्क एज ए यूवी एडिटिव्स। So here is the 3 different grade. APS pigment 90 is suitable for water based, solvent based, both application. R is mainly suitable for solvent based and powder coating. UV is also for powder coating, industrial coating, coil coating, and all type of powder coatings. यहाँ हम लोगों ने ट्राई किया कि कितना पॉसिबल TiO2 का रिप्लेसमेंट का पॉसिबल होता है। हाई पीवीसी पेंट में जहाँ TiO2 लेवल लाइक 0.8 to 1% होता है, तो यू कैन रिप्लेस लाइक 100%, एंड मीडियम पीवीसी वेयर TiO2 लेवल is 5 to 6%, so you can replace like a 50%. In interior emulsion paint, like a 10 to 40% is the TiO2 level, where you can replace 40%. And low PVC, like 18 to 22%, here you can replace 30% of TiO2 without affecting the other property. ये हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन के बाद में किया है कि इसके बाद में कोई प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका ओपेसिटी डाउन नहीं होना चाहिए, उसका ग्लॉस नहीं डाउन होना चाहिए, उसका टिंटिंग स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए. So that is the optimized condition, but you have to optimize in your formulation because number of additives is different from other additives, so you have to optimize at your end. So these are the benefits of this pigment composite. It is easy dispersible because it is very finer, and it is in high speed ester you can very easily
डिस्पर्स की ज्यादा रहेगा, ग्लॉसी रहेगा। ऑप्टिमाइज TiO2 लेवल, इसमें भी TiO2 को यूटिलाइज रिड्यूस कर सकते हैं। कितना रिड्यूस करना है वो डिपेंड करता है फॉर्मुलेशन पे। रिड्यूस CO2 लेवल एंड लोअर कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि हम जब TiO2 बनाते हैं तो लॉट्स ऑफ CO2 इज इवॉल्व एंड जनरेटेड, so that's why, because whatever the TiO2 we reduce by the natural product, so it help to reduce the carbon footprint, reduce color pigment requirement and resting to yellowing, and this cost effective. These are the some of applications: water based and solvent based paint, powder coating, coil coating, whatever where we are using TiO2, you can use this product because you all are white and this is the composite product. Printing ink हुआ, water based, solvent based, एडिसिव हुआ, एडिसिव सीलेंट, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल, कहीं पे भी जहां भी TiO2 यूज करते हैं हम लोग इन कंपोजिट प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो TiO2 रिप्लेसमेंट के लिए रहता है। ये सिंपल फॉर्मुलेशन है, इसमें भी TiO2 लाइक 5-6% को डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, and here you can see the like TiO2 is 1.2%. Without TiO2 you can make the high PVC paint. So we, in short, we can say it can be used anywhere wherever we are use TiO2, like a low PVC paint, high PVC paint, interior, exterior rubber, जो बोला तभी के उस तरीके से कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। And next is important property, some of the time customer to like स्टैंडर्ड जो है उसका टिंटिंग कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि टिंटिंग स्टैंडर्ड का इतना है। हम लोगों ने इसमें TiO2 रिप्लेस किया, TiO2 रिप्लेस करने के बाद इसमें हम लोगों ने 20% TiO2 रिप्लेस किया, उसके बाद टिंटिंग देखा तो इसमें पिगमेंट ऐड किया, हम लोगों ने पिगमेंट रिड्यूस किया, ये सच पिगमेंट था, इसमें 1% हम लोगों ने पिगमेंट रिड्यूस किया, इसमें 2% किया, इसमें 3% किया, तो 3% जो कलरेंट है, पिगमेंट है, उसको हमने रिड्यूस किया। एंड दिस इज after reducing the 3% of colorant, it's you can see the tinting strength is almost equal to the standard one. So along with TiO2 reduction, you can also reduce the colorant or tinting also. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द केओलिन। केओलिन आप सभी लोग जानते हैं कि जनरली 2 टाइप्स का होता है, हाइड्रस केओलिन एंड कैल्साइन केओलिन। हाइड्रस केओलिन में 14 to 15% इज द वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है उसमें से, उसमें एयर गैप बन जाता है, उसमें होल बन जाते हैं, उसमें एयर पेनिट्रेट हो जाता है, इसकी वजह से वो कैल्साइन होने पे ओपेसिटी देता है। So here you can see the some of the scan electron microscope. First one is the delaminated clay और कैल्साइन क्ले। कई बार कुछ कंफ्यूजन रहता है कि डीलैमिनेटेड क्ले किसको बोलते हैं, डीलैमिनेशन किसको बोलते हैं। इट इज द पार्ट का मीनिंग क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अपना फॉर एग्जांपल बच्चों का नोटबुक है या अपना बुक है, अगर किसी को बोला जाए कि इसको फाड़ दो तो आप कैसे भी उसको फाड़ सकते हो, उल्टा पुल्टा कैसे भी उसको टुकड़े कर सकते हो। लेकिन एक तरीका क्या है, ये भी है, उसमें एक एक पेज को हम सेपरेट करें, तो एक एक पेज को हम सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीलैमिनेशन। मतलब एक एक लैमिनेट जो बने हुए हैं उसमें एक एक लैमिनेट को हम सेपरेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्लेट जो है लाइक 1 पेज इक्वल टू 1 प्लेट, तो उसका क्या है, डायमीटर ऊपर का जो एरिया है वो सेम रहता है, ओनली थिकनेस विल रिड्यूस। तो इसकी वजह से उसका वेरिएट प्रॉपर्टी ज्यादा देता है, दैट इज कॉल्ड द डीलैमिनेशन प्रोसेस। Here we have discussed some of the hydrous kaolin as well as the calcine kaolin based on the particle size, based on the this dispersion, and based on the brightness. It is divided in different categories. This high brightness and specialty kaolin for excellent dispersion, improved gloss and opacity. Next is the calcine kaolin. It is also a different grade. One is the APF Tex 90, the imported one, and APF Tex is the domestic one. All are this having the high brightness and work as a TiO2 extension. It gives the gloss and matte opacity. So sometimes we require the matte opacity and sometimes we require the glossy paint. And we also heard about the white China kaolin. It is also called the semi-calcine kaolin. So here we have discussed this hydrous kaolin. Hydrous kaolin is ultra fine hydrous kaolin. It is having the high brightness, whiteness, and this is designed to provide, because आप देखोगे जहाँ भी ग्लॉस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम जितना भी है वो हाई ग्लॉसी होता है, इसलिए उसमें हाइड्रस के लिए यूज होता है, जनरली कैल्साइन के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रस के लिए का डिस्पर्सन अच्छा होता है, उसका पार्टिकल साइज फाइनर होता है। तो हियर वी हैव डिस्कस्ड 2 grades is APS gloss 90 is like equivalent to the polygloss. It gives the very good dispersion, and here you can see the particle size D50.2 micron. It is very finer. It is finer than the TiO2 also, and 2 micron is 97. And second one grade is for regular application, the APS port gloss. Here is the particle size is minimum 2 micron 80 and D50.6 plus minus 0.1. So here you can also see the brightness. APS gloss जो है उसमें brightness ज़्यादा होता है,
आप आज से करीब 5-7 साल पहले, 10 साल पहले आप देखोगे तो इंडिया में हाइड्रस के लिए बहुत कम यूज करते थे, क्योंकि पॉलीग्लॉस ही चलता था जिसका सबसे ज्यादा कंजप्शन। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज्यादा रहता है, इसलिए क्या है कि उसको कम यूज करते थे। दूसरा के लिए जो अपने इंडिया में अवेलेबल है वो ब्राउनिश कलर का होता है, थोड़ा ऑफ कलर का होता है, इसलिए कलर अच्छा ना होने की वजह से। लेकिन नाउ इट इज लॉट ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, इट कम्स फ्रॉम द यूएस, and so many suppliers is making the this finer kaolin is equivalent to the very finer grade, is a very popular grade is polygloss 90। तो इसके इक्विवेलेंट है जो सॉल्वेंट बेस के लिए पहले से यूज करते हैं लोग। वाटर बेस में तो यूज करते ही हैं, बट इट इज मेनली फॉर सॉल्वेंट बेस, बिकॉज सॉल्वेंट बेस में क्या है, कैल्साइन काओलिन हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो ग्लॉस को कम कर देता है। Next is the here you can see the APS gloss. APS gloss 90 का दिया है because it is a high performance kaolin, contribute to excellent gloss and improve opacity through efficient TiO2 spacing। मेन प्रॉपर्टी इसका जो होता है कि ये ग्लॉस अच्छा एकदम हाई ग्लॉस ये प्रोवाइड करता है। जो जहाँ भी हम हाई ग्लॉसी पेंट बनाते हैं, whatever the water base है and whatever the solvent base, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी पेंट हो, जहाँ पे हमको ग्लॉस इंपॉर्टेंट होता है, तो वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड बिकॉज हियर यू कैन सी द पार्टिकल साइज, इट्स शेप इज द प्लेटी शेप, so that's why it also give the very good the barrier property। barrier property देने की वजह से इसको एक्सटीरियर पेंट में भी यूज कर सकते हैं। and because it is the kaolin, so it is inert, it doesn't react with the acid, alkali and other solvent। और मैंने उस दिन बताया कोई भी मिनरल ऐसा नहीं है जो आपके पेंट सिस्टम में किसी से भी रिएक्ट करता है। ओनली कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा है, समटाइम आपके एसिड जनरेट होता है तो वो रिएक्ट करता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मिनरल इज अनरिएक्टेड, or we can see the inert which cannot react with the any part of the system or any solvent or any region। राइट हैंड साइड में आप ये देखोगे कि हियर इज द TiO2 अगेन, एंड इन दोनों के बीच में TiO2 के बीच में kaolin पार्टिकल है। सो kaolin पार्टिकल इज वर्क एज ए स्पेसर एंड स्पेसिंग द TiO2 पार्टिकल। एंड हियर यू कैन सी द पार्टिकल साइज ग्राफ, इट इज वेरी द स्टीप कर्व, बिकॉज ये ब्रॉड नहीं है, स्टीप कर्व है, वेरी एक प्रीसाइज, मतलब इसको पार्टिकल साइज को बोल सकते हैं, वेरी मतलब बहुत ब्रॉड वाला नहीं है। ब्रॉड होता है तो हमको ग्लॉस कम मिलता है, और ये एकदम स्टीप पार्टिकल साइज है, that's why it gives the very good gloss in the system। so these are the benefits। you can see the ultra fine particle size is 200 nanometer, it help to improve the gloss and give the excellent dispersion, effectively spacing TiO2 and contribute to improve opacity and the binder extension। some cases it also help to reduce the binder content and improve homogeneity and keep material in suspension। कई बार क्या होता है, सेटलिंग का इश्यू आता है पेंट में, जो फिलर यूज करते हैं, तो ये हाइड्रस काओलिन जो है बहुत फाइनर होता है, इसकी वजह से सस्पेंशन में भी रखता है, रियोलॉजी इंप्रूव करता है। एंड दिस एक्सीलेंट टिंटिंग इज आल्सो गिव। एप्लीकेशन कौन कौन सा हो सकता है इसका, वाटर बेस जितने भी प्रीमियम ग्लॉसी पेंट है, एक्सटीरियर पेंट है, आपका साइन है, रॉयल है, इस टाइप के पेंट में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। हाई ग्लॉस सॉल्वेंट बेस कोटिंग्स है, लाइक सिंथेटिक एनिमल्स हैं, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जितने भी सॉल्वेंट बेस में जहाँ पे भी ओनली हम TiO2 यूज करते हैं, क्योंकि ग्लॉस की वजह से दूसरे फिलर यूज नहीं करते, वहाँ पे ये हाइड्रस काओलिन को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चरल कोटिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल कोटिंग है, बोर्ड प्राइमर है, इंक में यूज करते हैं, वाटर बेस सॉल्वेंट बेस दोनों टाइप की इंक में। फिर पिगमेंट में भी ये काफी यूज होता है, जो पिगमेंट बनाते हैं, टिंटिंग पेस्ट बनाते हैं, रबर में, प्लास्टिक में। तो जहाँ भी मैक्सिमम एप्लीकेशन में एक्चुअल में ये सूटेबल है, क्योंकि पार्टिकल साइज फाइनर होता है, डिस्पर्सन अच्छा होता है, तो इजीली डिस्पर्स हो जाता है, एंड इट गिव द वेरी गुड ग्लॉस। नेक्स्ट द कैल्साइन काओलिन, ज्यादा चाहिए, ग्लॉस का थोड़ा वो कम रहता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सटीरियर पेंट में कम यूज करते हैं। बट अभी बहुत सारे डिफरेंट उसमें इनोवेशन आए हैं जिसकी वजह से हम एक्सटीरियर में भी यूज कर सकते हैं। तो अल्ट्रा फाइन दिस कैल्साइन काओलिन हैविंग द हाई ब्राइटनेस, वाइटनेस, इट इज वेरी इफेक्टिव ओपेसिफाइंग एक्सटेंडर इन द पेंट। सबसे ज्यादा हम इनिशियली आप पुराने टाइम में भी देखोगे तो कैल्साइन काओलिन द बेस्ट फिलर व्हिच कैन यूटिलाइज एज ए TiO2 रिप्लेसमेंट, इज पार्शियली रिप्लेसिंग TiO2, sometime 20%, sometime maybe 25%, sometime maybe 15%, depend on the formulation, you can replace the TiO2 by using the calcine kaolin। इसमें भी आप देखोगे two different grade, one is the having the very good brightness is 95 ±2, and is the imported one, and it is a particle size, you can see the minimum 2 micron is the 85 to 90, and second one is the domestic is the APS tax, is brightness is 92 ±2, and here particle size 2 micron is 65 to 75। एंड क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, इट गिव द बेटर ओपेसिटी एंड वाइटनेस,
ग्लॉस भी इसमें देता है, जो भी अगर हम इम्पोर्टेड यूज करते हैं तो इसमें ग्लॉस भी मिलता है, अच्छा ग्लॉस। Ti2 रिप्लेसमेंट रहेगा 15 to 25%, एक्सेलेंट डिस्पर्सन रहता है। और अभी क्या हो गया है, पहले सिंथेटिक एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज करते थे लोग, बिकॉज वो अच्छा ओपेसिटी देता है, लेकिन अभी ये कैल्साइन के लिए से उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पज रहता है ओपेसिटी, जहाँ पे ग्लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे हम लोग इसको सिंथेटिक एल्यूमिनियम सिलिकेट को रिप्लेस कर सकते हैं। इट गिव द ड्यूरेबिलिटी एंड वेरियर प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज द प्लेटी नेचर, सो इट्स गिव द वेरियर प्रॉपर्टी ऑल्सो। एंड एप्लीकेशन में जितने भी वाटर बेस्ड पेंट हैं, टेक्सटाइल में है, कई जगह मतलब इसको जहां भी ओपेसिटी चाहिए, जहां भी Ti2 को रिप्लेस करना है, वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट वेरी गुड प्रोडक्ट विच वी आर सप्लाइंग टू सो मेनी कस्टमर, वी आर गेटिंग द वेरी गुड फीडबैक एंड वेरी गुड रिजल्ट एंड वेरी गुड कन्वर्जन। सो वी कैन सी द वाटर रिपेलेंट एक्सटीरियर कोटिंग। अभी क्या एक्सटीरियर कोटिंग्स में हम लोग क्या करते हैं, रेजिन सिस्टम, रेजिन ज्यादा यूज करते हैं। रेजिन ज्यादा यूज करने के लिए हम वाटर रिपेलेंसी अचीव करने के लिए हम ज्यादा रेजिन यूज करते हैं या सिलिकॉन एडिटिव यूज करते हैं। बट मैंने उस दिन भी बताया इसमें क्या रहता है कि सिलिकॉन एडिटिव अगर हम यूज करते हैं तो सरफेस पे आ जाता है, आफ्टर सम टाइम इट इज वॉश आउट, वो रिड्यूसिंग द डर्ट पिकअप, डर्ट पिकअप नहीं करेगा। अभी इसमें क्या बेनिफिट है, जैसे रेन आता है, बिकॉज इज द मेसनरी वर्क एंड वाटर इज पेनिट्रेट थ्रू द कोटिंग टुवर्ड द सबस्ट्रेट, जो दीवार है अपना उसकी तरफ पानी पेनिट्रेट होता है, और धीरे धीरे पानी अगर रह जाता है तो उस पर क्या है कि एल्गी और फंगस भी डेवलप हो जाता है, कोटिंग खराब हो जाता है और धीरे धीरे उसमें डर्ट पिकअप होता है। लेकिन अगर वाटर रिपेलेंसी के लिए अभी हम डालते हैं कुछ रेजिन वगैरह, रेजिन नो डाउट वाटर रिपेलेंसी तो देता है, बट इट आफ्टर सम टाइम इट इज वॉश आउट एंड ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है, और क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा रहता है सरफेस पे, स्टिकी रहता है, इसकी वजह से वो डर्ट पिकअप करता है। बट बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट इज द APS Lite, the surface modified filler, it gives the very good water repellency and so अभी जो हमारा सरफेस है, जो भी कोटिंग्स है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, तो वी हैव टू यूज व्हाटएवर द सिलिकॉन एडिटिव, व्हाटएवर द यू हैव टू इंक्रीज द रेजिन परसेंटेज और यू हैव टू यूज द अदर प्रोडक्ट। So APS Lite is the high grade innovative multifunction filler, as a number of advantage like water repellency। और सेकंड वन मैंने उस दिन बताया वेट ओपेसिटी। जनरली क्या होता है, पेंटर जब पेंट मारता है तो जब तक उसको व्हाइट नहीं दिखता है तब तो वो पेंट मारता रहता है, ब्रश घुमाता रहता है, तो उसका वेट जो उसका एरिया है जिसका कंजप्शन है वो ज्यादा होता है। इसलिए ये प्रोडक्ट क्या है, वेट ओपेसिटी देता है, बिकॉज इट ऑल्सो गिव द कोरोजन प्रोटेक्शन, बिकॉज पानी को पेनिट्रेट नहीं हो देता है, किसी से सॉल्ट को पेनिट्रेट नहीं होने देता है, तो इट इज फार सुपीरियर टू कन्वेंशनल बैरियर फिलर सच एज माइका एंड टाल। उनकी कंपेरिजन में इट्स ए वेरी गुड बैरियर फिलर। And these are the benefits because it work as a on fast drying technology, AG dispersible multifunction filler, fast dry मतलब जो भी बारिश हुआ कुछ हुआ पानी गया उसके तुरंत बाद वो ड्राई हो जाता है। dispersion is very good, it gives the excellent wet opacity, high gloss with better dispersion, Ti2 replacement up to 15 to 25% also, eliminate the need of expensive silicone additive, moisture and dirt pickup is very less, क्योंकि पानी नहीं रहेगा सरफेस पे तो मॉइस्चर और डर्ट पिकअप भी नहीं करता है। लेस ससेप्टेबल टू एल्गी एंड फंगस, सेम अगेन अगर अपना सरफेस फास्ट ड्राइंग होता है तो फंगस और एल्गी को भी डेवलप नहीं होने देता है। एंड इट गिव द ड्यूरेबिलिटी इन बैरियर एनहेंसमेंट एंड हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। इसको एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको एक्सटीरियर पेंट हो गया, वाटर बेस्ड एक्सटीरियर पेंट, सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग में यूज कर सकते हैं, जहाँ आपको वाटर रेजिस्टेंट पुट्टी बनाना है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये टेक्सटाइल में भी अभी काफी यूज होता है जो डिफरेंट टाइप के हम बेड शीट बनाते हैं, कोटिंग बनाते हैं, जहाँ पे हमको क्या है वाटर रिपेलेंसी चाहिए या स्टेन रेजिस्टेंट चाहिए, सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। Here you can see some of the this pictures. Here you can see the cement block where we have applied this coating. Left side is the with product and APS Lite, and right hand side it is the without APS Lite. So here you can see we have put the colored water droplet, and left hand side it is the droplet is remain present on the surface, but right hand side it is penetrated in the block. Here you can see other pictures also, and इसके अलावा एल्गी और फंगस टेस्ट के लिए भी देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है, सरफेस उसका थोड़ा काला काला पड़ने लगता है या ग्रीन ग्रीन हो जाता है। राइट हैंड साइड वाले में कोटेड सरफेस की वजह से आप देख सकते हो इट इज व्हाइट। So APS Lite is used in the formulation. Water does not retain on the film as it dry fast, so that mold, moss, and algae have no chance of spreading. ये उस दिन भी बताया मैंने, ये आप देख सकते हो कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में विदाउट APS Lite है, राइट हैंड साइड में बाय यूजिंग दिस
surface modified filler, you can see the water repellency test, and this is the filler combination. Like a pure acrylic, you can say use like a 35-36%, TiO2 is 15%, 15-16%. The submicron calcium carbonate 10%. Is the hydrous kaolin is very fine, is the 5%, and this APS light is the surface modified filler. You can use like a 7-8%. Next product is the colored silica. It is the UV stable, color fast, and import substitute high performance color quality. यूज होता है, फ्लोरिंग में यूज होता है, ये ग्राउटिंग में यूज होता है, तो उसका कलर फास्टनेस, यूवी स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए। एक्टिव एब्रेशन रेजिस्टेंस रहता है, क्योंकि सिलिका है तो एब्रेशन अच्छा रहेगा। एक्सीलेंट केमिकल है, बिकॉज अगेन इट इज इनर्ट मटेरियल, सो इट डजंट रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज द एल्कली। एंड एडवांस कलर कोटिंग केमिस्ट्री, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप का इसमें कोटिंग रहता है। सो ऑप्टिमल ग्रेन साइज एंड साइज का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपका यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए साइज का। आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? वॉल प्लास्टरिंग है, रिकमेंडेड फॉर बोथ एक्सटर्नल इंटरनल एप्लीकेशन में, टेक्सचर में भी यूज कर सकते हैं। वर्क टॉप एंड किचन सिंक, कई बार आप देखा होगा कुछ एक दिस एमएनसी कंपनी दे आर मेकिंग द वर्क टॉप, जो अपना टेबल टॉप होता है वो बनाते हैं इससे। बड़ी बड़ी होटलों में किचन सिंक आप देखोगे बड़ी बड़ी उनमें, तो दे आर मेकिंग द कलर दिस वर्क टॉप, टेबल टॉप और किचन सिंक बाय यूजिंग दिस कलर क्वाज। एंड कलर इपॉक्सी ग्राउट, जो अपनी दो टाइल्स के बीच में हम ग्राउटिंग भरते हैं, दिस इज द कलर ग्राउट। इपॉक्सी फ्लोरिंग, texture and architectural coating, decorative stone carpeting. So these are the different applications where you can use this product. So different size, different color. You can see left hand side more than 40 color is available and different sizes. So 45 color different size में रहेगा। एज पर डार्क कार्ड भी रह सकता है, एज पर कस्टमाइज कलर भी रह सकता है। ये सम ऑफ द पिक्चर्स आप देख सकते हो किस टाइप का इसका दाना रहता है। इपॉक्सी ग्राउट में कैसे यूज करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल 1 kg आपको इपॉक्सी ग्राउट बनाना है, तो 700 ग्राम आपको फिलर यूज करना है। रेजिन आपको 200 ग्राम, इपॉक्सी रेजिन कोई भी लेना है 200 ग्राम लेना है, और हार्डनर इसमें 100 ग्राम रहता है। जो भी बकेट मार्केट में अवेलेबल रहती है 1 kg की, तो उसमें 700 ग्राम फिलर का एक अलग से पैक रहता है। रेजिन का 200 ग्राम का एक बोतल में रहता है, और हार्डनर 100 ग्राम उसमें रहता है। अगर इसी के रेशो में 5 kg का है, तो इसी रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं उसको, और वो बकेट में उसको पैक करते हैं। तो ये तो बता ही दिया इसका, ये हो गया। इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट एप्लीकेशन। किचन सिंक जो मैं बोल रहा था, राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो। इपॉक्सी ग्राउट के बीच में देख सकते हो, टाइल्स के बीच में इपॉक्सी ग्राउट भरा हुआ है। इपॉक्सी फ्लोरिंग है, डिफरेंट लाइक पार्किंग हुआ, एयरपोर्ट्स हुआ, डिफरेंट जगह पे आप देखोगे। फिर आपका ये जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, उनमें आपको डिमार्किंग के लिए आपको यूज करना है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि कलर क्या होता है, सम टाइम के बाद निकल जाता है, ये एब्रेशन रेजिस्टेंट भी रहेगा, तो आपको कलर भी देगा, और आपको कलर कोडिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टेक्सचर कोटिंग। टेक्सचर कोटिंग में इसमें डिफरेंट टाइप के शेप रहते हैं, डिफरेंट टाइप। अभी हम लोग डिस्कस करें टेक्सचर पेंट में क्या जाता है। एक आपका इमल्सन रहता है, दूसरा उसमें मार्बल के ग्रेन्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप के मार्बल ग्रेन्स रहते हैं। साइज उसका रहता है, आप देख सकते हो डिफरेंट कलर में अवेलेबल है, रेड है, ब्लैक है, येलोइश है, ब्लैक है। तो ये साइज रहता है जनरली ग्रेन्स का 50, 150, 30, 80, 24, 52 एंड 16, 32। 1 mm को हम 10, 16 भी बोलते हैं, 2 mm को 8, 10 भी बोलते हैं, 3 mm को 6 to 8 भी बोलते हैं। और ये अवेलेबल रहता है 10 to 20 कलर्स में। आप देख सकते हो इतने कलर, 1 2 3 12 कलर इज अवेलेबल हियर। एंड नेक्स्ट द कलर्ड फ्लैग। फ्लैग लाइक हेरिटेज का आप देखोगे, उस टाइप के फ्लैग हैं। वो फ्लैग हम लोग ये बनाते हैं, ये इमल्सन के साथ में मिक्स करके उसको लगा सकते हैं, तो यू कैन गेट द हेरिटेज इफेक्ट। दिस द कलर फ्लैग।
एंड दिस द मार्बल ग्रेन्स यू कैन सी एकदम वाइट रहेगा, इसमें डिफरेंट साइज में रहेगा जैसे ऊपर बताया, इसमें कोर्सर भी रहेगा, फाइनर भी रहेगा। दिस इज द टेंटेटिव फॉर्मुलेशन ऑफ द टेक्सचर कोटिंग, लाइक HEC लाइक 0.5% रहता है। क्वार्ज भी यूज करते हैं कुछ लोग, मार्बल यूज करते हैं 30, 80, 45%, फिर मार्बल पाउडर रहता है 50, 150, मतलब कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अगर कलर चाहिए हमको तो डिफरेंट टाइप का, लाइक 16, 24 साइज इज द 25%, वाटर इज 5% and pure acrylic emulsion is 15%. So you can make the this one. मनीष जी चलें आगे और थोड़ा के अभी। हेलो मनीष जी। मनीष सर कंटिन्यू करिए। ये कंटिन्यू कर लेते हैं, उन्होंने 4 o'clock बोला था एक्चुअली, 4 और 4:15, तो मैं अभी ये प्रोडक्ट और कंटिन्यू कर देता हूँ। नेक्स्ट इज द हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग। सो नाउअडेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाँ इसमें मैं एक चीज थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। समटाइम हीट रिफ्लेक्टिव एंड हीट इंसुलेशन दोनों टर्म डिफरेंट रहता है। कई बार कस्टमर उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हीट रिफ्लेक्शन पेंट बनाना है आपको, हीट इंसुलेशन पेंट बनाना है, कौन सा बनाना है। हीट इंसुलेशन क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर है आपके रूम का है, वो हीट आपको बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर की हीट अंदर नहीं आनी चाहिए, दैट इज द हीट इंसुलेशन। हीट इंसुलेशन जैसे हम सर्दी में टेम्परेचर हमारा ठंडा रहता है तो बाहर से नहीं आना चाहिए, बाहर का जो कोल्ड है वो अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे बाहर की फॉरेन कंट्रियों में ज्यादा इश्यू रहता है इसमें कि हीट क्या है कि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर उसको और ज्यादा हीट नहीं करे, इसलिए उसको क्या है कि वो कई बार हीट इंसुलेशन भी बोलते हैं। और फिर आता है हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग। हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग क्या होता है कि जो भी हम टेम्परेचर आया है ना हमारी जो कोटिंग पे पड़ा, उसको रिफ्लेक्ट कर दे, उसको अंदर ही नहीं आने दे, मतलब उसको एंटर ही नहीं होने दे, दैट इज कॉल्ड द हीट रिफ्लेक्टिव। तो पहले हीट इंसुलेशन के जो भी अपना टेम्परेचर है घर का, उसको ना बाहर जाने दे ना बाहर का अंदर आने दे, दैट इज द हीट इंसुलेशन। हीट रिफ्लेक्टिव मतलब जो भी कोटिंग बना उसको रिफ्लेक्ट कर दे, उस हीट रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। और एक फायर रिटार्डेंट कोटिंग भी होता है, जिसमें क्या होता है कि फायर लगा सपोज तो उसमें कुछ एडिटिव ऐसा रहता है, जैसे ATH है, जिंक बोरेट है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर एवोपरेट करता है, वाटर छोड़ता है, उसकी वजह से वो आग बुझ जाता है, दैट इज द फायर रिटार्डेंट कोटिंग भी बोलते हैं। हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग को हम जनरल जो डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं तो कैसा रहता है, गर्मियों के दिनों में हम जनरली व्हाइट कपड़े पहनते हैं या लाइट कपड़े पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं कि व्हाइट और लाइट जो कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि डार्क कलर जैसे ब्लैक कलर हुआ या और भी कोई डार्क कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम लोग डार्क कपड़े नहीं पहनते हैं, लाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जिससे वो मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट करे, अपनी बॉडी को कूल रखे। दूसरा एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हो कि ऊपर टेरिस पे मोजेक चाइना लगाते हैं, डिफरेंट टुकड़ी टुकड़ी रहती है टाइल्स की, वो भी व्हाइट रहती है। वो उसका भी मेन पर्पज यही है कि मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट करे, जिससे अपने रूम का टेम्परेचर ठंडा रहे। सो दैट इज द हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस। Here you can see the different type का, राइट हैंड साइड में देखोगे फोटो, ये स्प्रे करके भी कर सकते हैं, इसको रोलर से भी कर सकते हैं, हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर रहा है। ये पिक्चर में देखोगे सेकंड वन में ये लाइट आया, लाइट को उसने कितना रिफ्लेक्ट किया, दैट इज द रिफ्लेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पिक्चर में आप देखोगे कि हम लोग कैसे चेक करें, तो उसमें क्या किया है, एक रूफ पे कोटिंग किया है, 2 लैंप लगा दिया है जो इंफ्रारेड लैंप, आजकल जो हम ये कोरोना वायरस को चेक करने के लिए जो भी यूज करते हैं वो भी IR लैंप ही होता है, IR गन होता है वो भी, और जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो उसी टाइप पे एक IR लैंप अवेलेबल होता है, कई बार आपने देखा वो ऑर्थोपेडिक के पास भी रहता है, जब हमारे हाथ में कहीं पे मोच आ जाती है जाते हैं तो वो हीट देता है, दैट इज ऑल्सो IR लैंप, वो भी IR लैंप होता है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है, तो उसको हम लोग उससे एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, उसको हीट अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों में अंदर का हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो कूल रूफ कोटिंग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 32 टेम्परेचर है, राइट हैंड साइड पे कोटिंग नहीं लगाया हुआ है, कोल्ड रूफ नहीं है, तो 39.1 टेम्परेचर है। अभी बहुत सारे लोग कूल रूफ कोटिंग बनाते हैं, आप इंडिया में देखोगे तो बहुत अवेलेबल है कूल रूफ कोटिंग। मैं खाली जनरल कंसेप्ट उसका बता देता हूँ और कौन सा प्रोडक्ट हमारा वर्क करता है। उसमें जो भी सोलर रेडिएशन होता है, जो भी सन से लाइट आती है, उसमें 5% अपना लाइट जो रहता है वो यूवी लाइट रहता है, 46% द विजिबल लाइट होता है,
और 49% इधर इंफ्रारेड लाइट होता है। IR जो लाइट होता है वो 49% होता है, उसकी वजह से हमको ज्यादा हीट मिलता है, ज्यादा हमारा गर्म रहता है। अब ये यूवी लाइट और ये क्या रहता है, विजिबल जो अपना रीजन होता है, कई बार लोग 400 to 700 नैनोमीटर भी बोलते हैं, कई बार 400 to 800, दैट इज द विजिबल। उसके बाद 700 या 800 के बाद शुरू होता है, उसको हम IR रीजन बोलते हैं। उसमें भी दो होता है, नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। मतलब जो पहले का रीजन होता है लाइक 700 से 1400 या 1200 तक का, दैट इज कॉल्ड द नियर इंफ्रारेड रीजन। और उसके बाद 1200 या 1400 बाद में 2400 या 2500 नैनोमीटर तक रहता है, दैट इज कॉल्ड द फार IR रीजन। तो दो रीजन होता है, नियर IR एंड फार IR। तो ये लाइट का वो हुआ कितना रहता है कि 5% यूवी लाइट हुआ, 46% विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जिसमें अपन देखते हैं, दैट इज द रीजन इन लाइक 400 to 700 और 800 नैनोमीटर। और 49% जो IR रेडिएशन है, IR लाइट है, जिसकी वजह से अपने को गर्मी रहती है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 700 और 800 नैनोमीटर एंड इट गोज अप टू 2400 2500 नैनोमीटर तक जाता है। अब इसमें TSR एक वैल्यू आता है, जब भी हम रिफ्लेक्टेड कोटिंग बनाते हैं, IR या हीट रिफ्लेक्टेड कोटिंग बनाते हैं, तो TSR वैल्यू चेक करते हैं। TSR इज द टोटल सोलर रिफ्लेक्टेंस, जो भी लाइट पड़ा उसका कितना रिफ्लेक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड द TSR वैल्यू। So TSR is the amount of solar radiation which is reflected by a surface is measured as a percentage. कितना परसेंटेज उसका रिफ्लेक्शन हुआ, that is called the TSIR. So pigment can absorb or reflect solar infrared energy resulting in heat buildup. If coated surface pigment absorb IR radiation. अगर IR एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो बिल्डिंग अपना हीट होगा, अपना कोई भी जो भी एरिया है, सबस्ट्रेट है, वो गर्म होगा। और लिटिल और नो इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ द पिगमेंट रिफ्लेक्ट IR। अगर उसमें कोटिंग में आपका ऐसा पिगमेंट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है IR रेडिएशन को, तो आपका वो सबस्ट्रेट या कोटिंग्स या बिल्डिंग आपका हीट नहीं होगा। सो व्हाइट पिगमेंट हैव ए हायर सोलर रिफ्लेक्टिविटी ड्यू टू देयर व्हाइट कलर। सबसे ज्यादा मैंने अभी भी एग्जांपल दिया डेली लाइफ में कि हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं, तो इस वजह से क्या है कि जितना भी व्हाइट सरफेस होता है, व्हाइट पेंट होता है, वो हीट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट कोटिंग से हमारा जो होता है वो उसका रिफ्लेक्शन पावर ज्यादा रहता है, उसकी वजह से कूल ज्यादा रहता है। जितना भी डार्क पिगमेंट रहता है उसका TSR वैल्यू काफी कम रहता है। अभी जो आइडियल कूल रूफिंग है, जिसका हम लोग बोलते हैं कि आइडियल कूल रूफिंग किसको बोलते हैं, जिसमें 100% रिफ्लेक्टेंस हो। अगर डार्कर का शेड है, कार्बन ब्लैक की अगर हम बात करें, तो रफली उसका 8% ओनली TSR वैल्यू होता है। लेकिन उसको अभी कुछ तरीके से मॉडिफाइड करके उसको 25-26% तक ले जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्हाइट ही नहीं रहता है, कई बार कलर कोटिंग भी लगाते हैं, तो वो भी आपका हीट रिफ्लेक्टेड रहना चाहिए। तो उसमें भी उस टाइप से हम लोग कुछ ऐड करें जिससे कि कलर पिगमेंट का भी हम TSR वैल्यू बढ़ा सकें, हीट रिफ्लेक्शन बढ़ा सकें। तो आइडियल रूफ कूल रूफ इज 100% रिफ्लेक्टेंस। एंड ये जो प्रोडक्ट है जो मैं बता रहा हूँ कि इट इज एन एनवायरमेंटली एडवांस टेक्नोलॉजी दैट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या है, कोई पिगमेंट वो रेजिन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, दिस इज द एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड दिस इज द नेचुरल। तो दिस द APS Cooltex is the innovative multifunction filler having a solar reflection value of 80 to 90%. More than 85% इसमें reflection value रहती है, and it significantly enhance the डर्ट पिकअप रेजिस्टेंट। क्या होता है कि बिल्डिंग पे डर्ट भी पिकअप हो जाता है, उसकी वजह से भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे अपने घरों पे सोलर रहता है, सोलर को भी हम क्या है बीच बीच में क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो क्या लाइट नहीं आएगा तो गर्म नहीं होगा। इसमें अपोज है कि इसमें मिट्टी को हटाने से आपका रिफ्लेक्शन पावर बढ़ता है। तो दिस इज डर्ट पिकअप नहीं करता है, इसका एक बेनिफिट ये है। दूसरा क्या है, सोलर रिफ्लेक्टेंस पावर मोर देन 80% रहता है। इसके क्या क्या बेनिफिट है, रिड्यूस द इंटीरियर टेम्परेचर बाई 6 to 10 डिग्री। जो टेम्परेचर है अपने रूम का वो 6 to 10 डिग्री तक कम करता है। रिड्यूस रूफ सरफेस टेम्परेचर बाई 30, मतलब ये रिड्यूस बोल सकते हो या इसको हम लोग रिफ्लेक्टेंस बोल सकते हैं कि अगर हम जो भी लाइट पड़ रही है उसको 30 से 50 डिग्री तक कम कर देता है, वहीं से उसको लौटा देता है, उसको एंट्री नहीं करने देता है। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर AC, क्योंकि हमको कूल करने के लिए AC चाहिए। AC हम ज्यादा यूज करेंगे तो एनर्जी कंजप्शन भी ज्यादा होगा। प्रोटेक्ट रूफ फ्रॉम डिग्रेडेशन, रेजिन जो हम भी यूज करते हैं वो भी डिग्रेड होता है उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है इट हेल्प ऑल्सो टू उसको डिग्रेड नहीं होने देता है थ्रू वेदरिंग एंड रिड्यूस मेंटेनेंस। और रूफ का मेंटेनेंस भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि बार बार आपको कोटिंग नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको इस टाइप के एडिटिव यूज नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, जो बताया कि आपका एनर्जी कंजप्शन कम हो जाएगा। क्रिएट ए मोर कंफर्टेबल एंड हेल्थियर इंटीरियर एनवायरनमेंट, जब आपका घर कूल रहेगा तो आपको हेल्थियर एनवायरनमेंट रहेगा। दूसरा क्या है, आपको कम AC चलाना है तो आपको वैसे ही अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो कंफर्टेबल रहेगा। कैन बी अप्लाइड ओवर ऑलमोस्ट ऑल एनी रूफ, कोई भी रूफ पे इसको अप्लाई, जहां भी हम कूल कोटिंग लगा सकते हैं।
एक्सटेंड लाइफ ऑफ रूफिंग सिस्टम। डेफिनेटली जब सब प्रॉपर्टी उसका पॉजिटिव होगा तो रूफ का लाइफ भी इम्प्रूव होगा। और रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग इन सिटी बिकॉज इट इज द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, so again it help to carbon footprint of the building and city. I think it's okay. Manish ji, Manish sir. हाँ जी सर। हाँ सर, अभी आगे चले, क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? क्यों 4:15 हो रहे, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा क्या आप क्या मेरा एक वो चल ही रहा, ऑडियंस चल रहा है उसका। आप मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करो सर, एक बार देखते हैं। हाँ मैं वही कर रहा हूँ सर अभी। मेरा ऑडियंस चल रहा है। यस सर। हेलो। एको हो रहा है भैया, एको। ऑर्केस्ट्रा जैसे साउंड आ रहा है अब तो। हेलो। और मिलिंद भाई कैसे हो? हेलो। बस बढ़िया है सर। बढ़िया सर। हाँ आवाज कट हो गई थी इसलिए। और मिलन भाई मजामा? बस मजा बापू मजा। अनिल जी। हाँ सर। वॉइस मेरा कंप्यूटर से नहीं चल रहा है, मुझे फोन से चल रहा है। हाँ हाँ। आपकी आवाज नहीं आ आंसर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही, मगर एको क्या आ रही है सर? वो पंगा कुछ हो गया टेक्निकली। चलिए, जो आप में से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एक बार अपना हैंड रेज करें प्लीज। कहीं पहाड़ों में चले गए क्या आप? सर फोन से चला रहा हूँ, पता नहीं पंगा हुआ पड़ेगा। मामला कहीं पहाड़ों में चले गए तो क्या? सर अभी ऊपर थोड़ी जाएंगे। चलिए सर। मैं पूछा क्वेश्चन मनीष जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ रंजीत सर पूछिए सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड में नॉर्मली मिक्सिंग होती है, तो इसको ट्रेसिंग इसकी कैसे हम लोग इसकी चेकिंग कर सकते हैं कि इसमें कितने % का चूना लग गया हमें? उस दिन सर मेरा वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन था, मैंने उस दिन बताया। उसमें क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल वे लेमन भाषा में TiO2 में थोड़ा पानी डालिए, है ना, और उसको हाथ से उंगली से मिक्स कीजिए और कोई भी ब्लैक पेपर पे उसका लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे अपन ओपेसिटी चेक करते हैं, और एक स्टैंडर्ड TiO2 का, और दूसरा जो आपका TiO2 है उसका चेक कीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा ओपेसिटी कैसा है। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी एक इम्पोर्टेंट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी TiO2 का 4.4 के आसपास रहता है। दूसरा मिनरल ओनली बेरियम सल्फेट होता है, जिसको कोई भी मिक्स कर सकता है, क्योंकि सिलिका मिक्स करेगा तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहता है। ओनली बेरियम सल्फेट एक ऐसा मिनरल है जो जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी TiO2 के इक्विवेलेंट रहता है। तो एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बाहर चेक करा सकते हैं उसका। दूसरा सर उसका ड्रो डाउन करके या ओपेसिटी जो भी लेमन भाषा में थोड़ा मिक्स करके आप देख सकते हो, उससे भी आइडिया बन जाएगा, पता लग जाएगा। दूसरा उस दिन मुकुंद सर ने भी बताया, उसका एक लड्डू जैसा हाथ से बना सकते हैं। अगर लड्डू जैसा बन जाता है तो इसका मतलब वो TiO2 है, अगर उसमें फिलर वगैरह मिक्स है तो वो इजीली नहीं बनता है। और एक सर इम्पोर्टेंट है, उसमें ऑयल एब्रेशन भी चेक कर सकते हो, ऑयल भी उसका कम रहता है TiO2 का। अदर अगर कोई एक्सटेंडर उसमें मिक्स है तो उसका ऑयलाइजेशन ज्यादा रहता है, ओनली एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट। खाली बेरियम सल्फेट को थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेस करना, उसको फिर आप केमिकली और आप दूसरे स्पेसिफिसिटी या अलग उस मेथड से कर सकते हैं, ओपेसिटी से कर सकते हैं। ओके सर। और कोई तरीका नहीं है? और तो नहीं सर, उसमें फिर क्या केमिकली आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि दो बाकी मिनरल का तो आपको इजीली आइडिया लग जाएगा। अगर कैल्साइट मिक्स किया है तो आप उसमें थोड़ा एफर्वेसेंस के लिए एसिड डाल सकते हो, जो अपने घरों में टॉयलेट क्लीनर होता है, ये पेस्ट बना के आप थोड़ा ऐड कीजिए, तो उसमें जैसे अपन कैसे थम्स अप की बोतल खोलते हैं, अगर ऐसे एफर्वेसेंस आते हैं मतलब उसमें दूसरा कोई मिनरल मिक्स किया हुआ।
और बाकी का भी कोई मिनरल मिक्स है तो उसका लॉस ऑन इग्निशन भी आप निकाल सकते हो फर्नेस में, उससे पता लग जाएगा। ओके, आई थिंक ये बेटर। सर ये जो आपने एपीएस कूलटेक्स बताया है, प्रोडक्ट को जो यूज करने के लिए सीधा जो इसको अप्लाई कैसे होगा, या इसमें और कोई मीडियम नहीं डलेगा, कोई बाइंडर नहीं डलेगा? ये तो सर आप जैसे आप TiO2 यूज करते हो उसके साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। बाइंडर तो डलेगा सर आपको, हाँ आपको पूरा कोटिंग तो बनाना ही है, पूरा कोटिंग बना के उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, पूरा कोटिंग बनेगा इसका? कोटिंग, हाँ। इसको वाटर बेस में, हाँ वाटर बेस में भी डाल सकते हैं सर। वाटर बेस में ज्यादा यूज करते हैं सॉइल में, तो वाटर बेस में सॉलिड में दोनों में चलेगा सर। अच्छा, दोनों में चलेगा। ये प्राइस वाइज क्या रेट है? प्राइस वाइज सर अभी ऐसे है यहाँ पे डिस्कस ऐसा, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, इसका परसेंटेज कितना रहता है? परसेंटेज सर जनरली रहता है करीब 8 to 12% के बीच में। 8 से 12% जाएगा। हाँ डिपेंड ऑन, हाँ कोई कुछ 12% करता है। और भी कोई फिलर भी ऐड होगा? फिलर और करना है तो कुछ लोग, मैंने एक फॉर्मुलेशन देखा, कुछ लोग कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं इसके साथ साथ, जैसे TiO2 कैल्शियम कार्बोनेट और ये वाला रहता है। कुछ एक में कैल्शियम कार्बोनेट को इससे रिप्लेस किया है, तो ऐसे भी उसको यूज कर सकते हैं। कुछ एक 1-2% जैसा 2 से 3% में देखा, बेरियम सल्फेट भी उसमें यूज करते हैं। सर इसका कोई वो देना, हमें सजेस्टेड फॉर्मुलेशन देख लेंगे अपने यहाँ ट्राई करके। यस सर, डेफिनेटली जो भी मेरे पास होगा मैं सर, मैं आपको अपना ईमेल आईडी भेज देता हूँ इसमें ग्रुप में। हाँ, चलेगा सर डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश ठाकुर जी। हाँ सर ये अपन ऑयल बेस्ड पेंट बनाते, ऑयल बेस्ड प्राइमर बनाते हैं, उसमें कैल्साइन क्ले यूज करना चाहिए कि हाइड्रस केओलिन यूज करना चाहिए, जो बेस्ट रहे? देखिए सर वैसे तो कैल्साइन, क्योंकि इसमें अपने को ग्लॉस तो चाहिए नहीं रहता है ना? आप उसमें कैल्साइन और उसमें बताए ग्लॉस में, क्योंकि इसमें नहीं चाहिए रहता। अपन जैसे आपका एपीएस पिगमेंट यूज करते हैं वो तो बेस्ट है, एनामल पेंट के लिए अच्छा रिप्लेसमेंट होता है, अपने को उसमें मिल रहा है। अच्छा, लेकिन आज अपने को लो लेवल पे प्राइमर के लिए कैल्साइन और इसमें क्या हाइड्रस में क्या बेस्ट रहेगा अपने को जो इसमें यूज कर सके? देखिए सर मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। बाकी क्या होता है, देखिए कैल्साइन केओलिन ओपेसिटी तो देता ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिसकी ओपेसिटी मस्त रहे, बढ़िया मिले, वो अपने को फायदा हो जाएगा, क्योंकि ग्लॉस तो चाहिए नहीं। हाँ ऐसे कैल्साइन केले की ओपेसिटी ज्यादा रहता है, बट थोड़ा कॉम्बिनेशन में यूज करें तो आपको ग्लॉस और ओपेसिटी का भी वो रहेगा, बट कैल्साइन केओलिन हाइड्रस केओलिन से ज्यादा ओपेसिटी देगा सर। कैल्साइन की हाइड्रस से ज्यादा है ना, तो फिर कैल्साइन तो ठीक है, मतलब अपने को अच्छा मिलेगा इसमें। अभी क्या सर आप पिगमेंट 90 यूज करते हैं हमारा? अभी पिगमेंट 90 यूज करते हैं, वो तो एनामल पेंट में यूज कर लेते हैं, तो उसमें भी काम आ जाता है। प्राइमर में उसका कॉस्ट थोड़ा सा वो है, तो इसलिए प्राइमर में अपन ये यूज करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा मेरे को लगता है। अपन पिगमेंट 90 उसमें ओपेसिटी अच्छा है और एनामल पेंट में अच्छा यूज हो जाता है, निकल ग्रे वगैरह पेंट बनाने में ना वो काम आ जाता है बढ़िया। उसमें सर ये भी यूज कर सकते हो जो मैंने बताया ना, सरफेस मॉडिफाइड फिलर है, वो भी यूज कर सकते हो। वो मैंने लिखा है उसमें 15 to 20% TiO2 भी रिप्लेसमेंट करेगा और डिस्पर्सन भी आपको अच्छा मिलेगा। क्या सरफेस 90 क्या बोले? सरफेस उसमें वो था एपीएस लाइट करके जो है, एपीएस लाइट। हाँ उसका प्राइस भी कम है काफी, उससे पिगमेंट 90 से काफी कम है, हाफ प्राइस का रहेगा रफली, तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। हाँ नमस्कार बंसल साहब, मैं जयेश पारेख बात कर रहा हूँ अपना मुंबई से। सर आपने जो एपीएस लाइट बताया कि वो फंगी ग्रोथ को भी रोकेगा, फंगस को, हाँ सर, तो फिर हमें बायोसाइड्स नहीं डालना है एक्सटीरियर पेंट में? सर इसमें देखिए ऐसा है, एक्चुअली आप पूरा तो रिप्लेस नहीं कर सकते बायोसाइड को, क्योंकि उसमें क्या रहता है, इसका मेन पर्पस जो क्या रहेगा कि पानी को सरफेस पे रहने नहीं देगा, जल्दी ड्राई होगा तो आपका फंगस और एल्गी वैसे ही डेवलप नहीं होगा। बट आप क्या है कि 100% रिप्लेस ना कर रहे हैं, मतलब कोई कुछ थोड़ा अमाउंट डालें, बट डोसेस आपकी डेफिनेटली कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। तो फिर वैक्स इमल्शन हम लोग पहले डालते थे बिकॉज़ ऑफ वाटर, वो निकाल सकते हो, वो निकाल देवे वैक्स इमल्शन निकाल के हम लोग एपीएस लाइट डाल सकते हैं। हाँ, तो उसमें आपको TiO2 रिप्लेसमेंट भी मिलेगा और आपको वाटर रिप्लेंसी भी मिलेगा, दोनों। और फंगी में भी यूज करिए, ड्राई फील्ड में। हाँ बायोसाइड भी आपके कम हो जाएंगे सर। चलो नाइस, देखते हैं सर, थैंक यू। AK श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी क्वेश्चन पूछेंगे।
हेलो हाँ आ रही है सर, हमको तो ए पे आपने बोला ए के श्रीवास्तव सर। हाँ सर पूछिए ए के श्रीवास्तव सर। उनके हेलो, नमस्ते अनिल सर। हाँ नमस्कार सर, कैसे हो? सर एकदम बढ़िया। सर एक मेरा प्रश्न है, जो ये हीट कूल रूफ कोटिंग्स है, इसमें हम लोग ये स्फेरिकल ग्लास माइक्रोस्फेयर्स भी यूज करते हैं। हाँ सर वही अभी एक्चुअल मैक्सिमम वही यूज करते हैं, बट उसको भी रिप्लेस कर सकते हो या कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। वो एक बार थोड़ा आपको थोड़ा ट्रायल करना पड़ेगा, बट उसको अभी तो इंडिया में वही यूज करते हैं ग्लास वाला जो है, लेकिन इसको रिप्लेस कर सकते हो आप इससे। ओके अच्छा सर, एक और प्रश्न है। एक बार आपने मतलब स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे नहीं, पर आपने वर्मिक्यूलाइट का नाम लिया था कि डीलैमिनेटेड। नहीं सर, मैंने अभी जब स्टार्ट किया दो चीज बताई मैंने, एक इंसुलेशन पेंट होता है, एक हीट रेजिस्टेंट पेंट होता है। ओके। इंसुलेशन के लिए मैंने वर्मिक्यूलाइट बताया। इंसुलेशन मतलब क्या, एक बार आपका जो बन गया, जैसे आपके रूम का जो टेम्परेचर है ना, तो वो क्या है बाहर का हीट अंदर आने देगा ना अंदर का हीट बाहर जाने देगा। ओके। मतलब खुद तो गर्म होगा, पर ऊपर से नीचे नहीं आएगी गर्मी। नहीं मतलब जो भी टेम्परेचर आपके रूम का रहेगा उतना ही रहेगा, उसको प्लस माइनस नहीं होने देगा। दूसरा क्या है, मैंने बोला वर्मिक्यूलाइट का, जैसे आप वुड कोटिंग में भी डालोगे तो आपको इकोस्टिक इफेक्ट भी मिलता है। जैसे आपने किवाड़ पे लगाया, गेट पे लगाया, तो बाहर की आवाज भी अंदर नहीं आने देगा, मतलब इंसुलेशन का काम करेगा। सिंपल मतलब ऐसे बोल सकते हैं। ओके सर, ये वर्मिक्यूलाइट आपके पास अवेलेबल है क्या? नहीं मेरे पास नहीं है सर, मैं एक कस्टमर हो रहे हैं उनको भी ढूंढ के दे रहा हूँ कुछ सोर्स। मैं तो नहीं, पर वो एक अपने कन्नू भाई भी देते हैं शायद, उनके पास भी है। और भी सर मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। जब अपन जो कैल्सिनेशन करते हैं, जब आपने कैल्सिनेशन समझाया था, तब आपने बताया था कि जो नॉर्मल क्ले होती है वो प्लेटी स्ट्रक्चर में होती है, और अपन कैल्सिनेशन करते हैं तो वो पोर्स हो जाते हैं अंदर, और वो इरेगुलर शेप्ड हो जाते हैं। नहीं पार्टिकल्स नहीं, प्लेटी तो रहेगी, प्लेटनेस तो रहती है, बट उसमें क्या होता है जहाँ से पानी निकलता है, एक्चुअल में 14% उसमें वाटर रहता है, जो पानी निकल के जाता है उसके बीच में एयर बॉइड्स बन जाते हैं, और एयर मतलब जो होल बन जाता है ना, उसमें एयर चली जाती है, इसकी वजह से वो ओपेसिटी देता है। मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दिया कि जब भी कभी हम समुद्र के किनारे जाते हैं, दरिया के किनारे, तो आप पानी देखोगे तो पानी आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन जब टाइड आता है तो टाइड के बीच में क्या होता है, एयर चला जाता है, इसकी वजह से व्हाइट दिखता है। जब भी हमको दूर से देखते हैं तो पानी हमको व्हाइट दिखता है। सेम इसमें काम करता है कि जब कैल्साइन के लिए बनता है तो उसमें बॉइड्स बन जाते हैं, होल हो जाता है, और उस होल में एयर चला जाता है, एयर की वजह से फिर वो व्हाइट दिखता है, व्हाइटनेस देता है वो। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर बंसल साहब, आपने कुछ फ्लोर कोटिंग्स के हमको फोटो बताया अभी, उसमें जो समझो ग्रीन कलर या रेड कलर का है, तो वो कलर वो क्वार्ट्ज कलर से आया हुआ है या पिगमेंट डाल के आया हुआ है? नहीं सर, पिगमेंट डाल के आया हुआ है वो। अच्छा, वो फिर कलर्स का क्वार्ट्ज भी कुछ ऐड करता है, कलर देना उसको? क्या सर? वो क्वार्ट्ज कलर के आपके जो कलर्ड वाले क्वार्ट्ज है ना आपके डिफरेंट कलर्स के, तो वो कुछ ऐड करते हैं कलर को कंट्रीब्यूट करने के लिए? हाँ मतलब जैसे क्या है, अभी इपॉक्सी फ्लोरिंग जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, व्हाइट ग्रेन्यूल्स लेते हैं, व्हाइट क्वार्ज लेते हैं और पिगमेंट डालते हैं ऊपर से। लेकिन क्या होता है कि पिगमेंट कई बार डिस्पर्स नहीं होता है, तो एक बार कई बार देखा होगा डॉटेड जगह जगह आ जाते हैं उसमें। दूसरा क्या रहता है, पिगमेंट लाइट होता है तो कई बार सरफेस पे आ जाता है, तो उसका वो निकल जाता है। लेकिन क्वार्ज के साथ अगर उसको कोटिंग किया हुआ है तो क्वार्ज का एब्रेशन भी ज्यादा रहता है और आपको कलर यूनिफॉर्म मिलेगा और वो निकलेगा भी नहीं सर। अच्छा, ये सर। डॉक्टर साहब तो महान है वैसे ही। हाँ डॉक्टर साहब का तो खुद का ही नॉलेज वास्ट है। डॉक्टर साहब हाँ ये बात तो सही है सर, हम लोग डे टू डे में सीखते ही हैं एक्चुअली। और अपना भी सर ऐसा ही है, मनीष सर आप देखोगे तो मैंने
मैं तो एक्चुअली कभी मैं तो मिनरल भी नहीं पढ़ा मेरी स्टडी में और पेंट भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कस्टमर जितने भी हैं उनसे डिस्कस करता हूँ और काफी सपोर्ट करते हैं मेरे को, मतलब नंबर ऑफ ये सब चीज मैं उनसे ही सीखा पूरा, जितना भी पेंट की बात है। डॉक्टर साहब, मुझे जस्ट मेरी एक ही क्वेरी है। जब भी आप सरफेस मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी फिलर का, यस सर, तो जब भी आप सरफेस मॉडिफाइड फिलर्स किसी को देते हैं, तो क्या अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेशन में एडजस्टमेंट करने के लिए भी बोलते हैं? नहीं सर, कई बार क्या होता है ऐसे एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं होता है, हम लोग उसको रिप्लेसमेंट कई बार बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्या होगा कि ये तो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड मटेरियल है, तो अभी क्या होगा उसको कहीं अकोमोडेट करने के लिए कुछ तो निकालना पड़ेगा उसमें से, क्योंकि पीवीसी डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो। अभी पीवीसी मान लिया आपका 40% पीवीसी है, तो दूसरा फिलर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग नहीं, मैं फिलर रिप्लेसमेंट या फिलर मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर ही आता हूँ सर, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्सटीरियर पेंट की बात करें, एक्सटीरियर पेंट में फॉर एग्जांपल कोई टाल्क यूज कर रहा है या कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहा है, तो वो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। समटाइम क्या होता है किसी को डिस्पर्सन में थोड़ा इश्यू है, तो वेटिंग में ऐसे तो प्रॉब्लम आता है क्योंकि नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट रहते हैं, तो जनरली हमारे में केमिकली आपको कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है। Yeah, good afternoon, Dr. Bansal. Yeah, good afternoon, madam. Boliye. Yeah, doctor, actually, this fillers and all, you have talked about different molecular size, correct? Yes, the plate yes. size and the molecular structure. Yeah, so, madam. is the density dependent on this structure? No, madam. Density तो फिलर का सेम ही रहता है, अलग अलग फिलर का अलग अलग ही रहता है। उसका साइज से फर्क नहीं पड़ता है, साइज रहेगा तो सरफेस एरिया आपका बढ़ेगा। जैसे सेम डेंसिटी का अगर हम लेंगे, क्योंकि एक फिलर का एक ही डेंसिटी रहता है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो 2.7 के आसपास रहता है। अगर हम उसको फाइनल करेंगे, जैसे जैसे फाइनल करेंगे तो उसका बल्क डेंसिटी कम होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और ना उसका विस्कोसिटी बढ़ेगा, बट उसका डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। Okay, I was just thinking like can we correlate this bulk density and tap density with the contamination? क्या टाल डेंसिटी और tap density, there is a testing tap density and bulk density, तो हम उसको contamination से correlate कर सकते हैं क्या कि bulk density? कंटामिनेशन से मैडम क्या है, उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी ऐड किया हुआ है ऐसे डेंसिटी से नहीं कर सकते। और उसमें क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, एग्जांपल लेता हूं मैं, तो उसमें कोई क्या मिक्स करेगा, सपोज डोलोमाइट हुआ उसमें या सिलिका मिक्स हुआ, तो उस टाइप का रहेगा। तो उसमें जनरली क्या रहता है कि जैसे उनके डेंसिटी बल्क डेंसिटी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे डोलोमाइट का कैल्साइट से थोड़ा ज्यादा रहेगा, सिलिका का और भी ज्यादा रहेगा थोड़ा। तो आपने एक बार स्टैंडर्ड सैंपल का कर लिया, उसके बाद में आप जो ट्रायल लॉट आता है या जो आपका सप्लाई लॉट आता है उसका फिर कोरिलेशन आप चेक कर सकते हो। That means it will give a rough idea कि है उसमें कुछ contamination किया हुआ है या mixing किया हुआ है। Yeah, definitely. Okay, thank you doctor. Yeah. प्रताप वैद्य जी पूछना चाहते हैं क्वेश्चन। प्रताप वैद्य जी। हाँ डॉक्टर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेरी है कि many people use the flash Kavlin yes sir, for optimization of the TiO2. Yes, so how it is different than the Kavlin which you are making? Yes, and that also could be used for TiO2 optimization. एक्चुअल में सर आप देखो तो फ्लैश केवलिन अभी कोई बनाता नहीं है। पहले एक चाइना की कंपनी बनाती थी, है ना, उसका क्या नाम था। जनरली क्या होता है अभी बोलते हैं ऐसे फ्लैश केवलिन, पर फ्लैश केवलिन कोई बनाता नहीं है एक्चुअल में तो अभी। बट व्हाट इट इज एक्चुअली? बात एक्चुअली क्या होता है कि फ्लैश कैल्सिनेशन क्या होता है, जैसे अपन पॉपकॉर्न बनाते हैं मकई के, तो मकई के पॉपकॉर्न में क्या रहता है कि वो फूल जाता है। सिमिलरली ऐसे ही आपका क्या होता है चाइना के लिए जब आपका कैल्सिनेशन करते हैं तो जो दो लेयर होती है, दो लेयर के बीच में गैप बढ़ना चाहिए। गैप बढ़ेगा तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रफली 2 के आसपास आ जाना चाहिए, जो 2.6 रहता है। तो वो लेकिन पॉसिबल है नहीं। वो सीएमपी करके पहले एक चाइना की कंपनी थी, सीएमपी मुझे याद आया, वो लोग फ्लैश कैल्सिनेशन बनाते थे, अभी वो भी नहीं बनाते हैं। तो जनरली कोई एक स्पेशलाइट करके एक प्रोडक्ट आता है, एक आध है जो वो भी एक्चुअली में इतना एक्यूरेट नहीं बोल सकते उसको सर। तो मेन चीज वही है कि जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो दो प्लेट के बीच में गैप बढ़ना चाहिए। गैप बढ़ेगा तो जैसे अपन पॉपकॉर्न कैसा होता है मकई का, फूलता जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सेम फ्लैश कैल्सिनेशन का रहता है। फ्लैश कैल्सिनेशन अगर प्रॉपर हुआ है तो उसका डेंसिटी 2 के आसपास 1.8 से 2 के बीच में आ जाता है। और दो अगर स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखोगे SEM, तो जो दो प्लेट है उनके बीच में गैप आपको दिखेगा।
अच्छा, मेरा दूसरा एक क्वेरी है कि this ASP pigment 90 what you say that in the low PVC you can replace 30% of the TiO2 you said, isn't it? correct, sir, So correct. how does it impact the weight opacity of the product, final product? नहीं सर, इसमें हम लोगों ने जो ऑप्टिमाइज किया है, एक्चुअल में क्या है, ऐसे तो लोग ज्यादा भी रिप्लेस करते हैं, बट हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपका कोई भी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका वेट ओपेसिटी है, आपका ओपेसिटी है और आपका ग्लॉस है। तो अगर, क्योंकि जैसे हमने बोला हाई पीवीसी में आप 100% कर सकते हो, 50% कर सकते हो, लेकिन लो पीवीसी हम लोग सजेस्ट करते हैं 20 या 30% ही, क्योंकि उसमें बाकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होती। सर मैंने आपको उस दिन ऐसे जनरल बताया, उसमें क्या होता है, ऐसा कोई मैजिक नहीं है इसमें। इसमें क्या है, सिंपल TiO2 का स्पेसिंग है, जो भी हम TiO2 सिस्टम में यूज करते हैं उसको एक तो कंपोजिट बना के डाला है। दूसरा क्या है कि मैंने बोला कि 30-40% TiO2 आपका सिस्टम में अनयूटिलाइज रहता है, तो उस जो TiO2 है उसका ही डिस्पर्सन बढ़ाता है, तो इस वजह से आपका 30-40% मतलब 20-30% तो ऐसे ही रिप्लेस हो जाता है। It means you have to optimize yourself. ये सर, हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी TiO2 प्लस फिलर को जब प्रेसिपिटेशन करते हैं तभी उसको एक्चुअल में स्पेसिंग किया हुआ है TiO2। Okay, thank you. हेलो। ये सर। हेलो। ये सर। सर आपके जो TiO2 जो रिप्लेसमेंट बोला, जो आपका जो लाइट है वो काफी यूजफुल है इस पेंट, वाटर बेस्ड पेंट के अंदर। मैंने उसको काफी टाइम से यूज भी लिया है। अच्छा। उसका वेट ऑपिसिटी बहुत बढ़िया है, उसके अलावा उसका ड्राई ऑपिसिटी वो भी बढ़िया है, एंड उसकी ड्राइनेस, क्विक ड्राइनेस वो भी अच्छा है, और वाटर बेस्ड के अंदर वो काफी यूजफुल है। आप किसमें सर यूज करते हो, एक्सटीरियर में किसमें? एक्सटीरियर इंटीरियर बहुत दोनों में चलेगा। और पेंट के अंदर मतलब इम्प्रूव क्वालिटी को काफी अच्छा कर देगा। हेलो। ये सर। हाँ, और इसके अंदर पेंट के अंदर जैसे काफी अच्छी वर्कबिलिटी, लस्टर होता है पेंट के अंदर कुछ, ये वो भी बढ़ाता है। अच्छा, हमने तो पहली बार सुना ये वर्ड, तो क्योंकि आपने कुछ ज्यादा ये वर्ड इसके अंदर ऑपोसिटी के अलावा इसके अंदर ये बोलते अपन ये वर्क, ये सॉरी शाइन है, गुड शाइन है। इसके शाइन के अंदर कोई रिड्यूस नहीं होता है, शाइन को इम्प्रूव करता है। तो ये टाइटेनियम को 100% रिप्लेस करता है। टाइटेनियम सर, ये शाइन का तो कई कस्टमर और भी बोले, क्योंकि जो एक्चुअल में डेवलप ही इस वजह से किया था कि एक्सटीरियर पेंट में लोगों को शाइन का प्रॉब्लम रहता था, जो काफी 23% तक TiO2 यूज करते थे। एक्चुअली मैंने एक कस्टमर है, उनके लिए डेवलप किया, जो 23% TiO2 यूज करते थे, उसके बावजूद भी उनको शाइन नहीं मिलता था, लेकिन अभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनको भी काफी अच्छा शाइन। बिल्कुल। बाकी दूसरे फिलर रिड्यूस करते हैं ग्लोस को, लेकिन ये फिलर सर रिड्यूस नहीं करता है ग्लोस को, ये इम्प्रूव करता है उसको। हाँ सर, अच्छा, गुड सजेशन आपने, अच्छा। हाँ, और इसके अलावा इसके जो व्हाइट टोन आता है, व्हाइट टोन को इम्प्रूव करता है, और जो टाइटेनियम का व्हाइट टोन एक ही चीज जो लाइट इम्प्रूव करता है। इसके अलावा कोई अदर कोई कंपनी, इसके अलावा फिर एक हाइड्रोस क्लोरिन है, वो भी अच्छा इम्प्रूव करता है। क्या सर? एक हाइड्रोस कायोलिन आता है, वो भी अच्छा करता है, लेकिन व्हाइट टोन ज्यादा बेटर अपने को चाहिए, उसकी जगह व्हाइट लाइट इज बेटर फिलर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका फीडबैक बहुत। हाँ, मैं से एवरीबॉडी को, लेकिन कोई भी इसको यूज करे, लेकिन लाइट को एक बार यूज जरूर करके देखना चाहिए उसको। अच्छा, थैंक यू सर। विकास जी पूछे क्वेश्चन सर। हेलो। हाँ जी विकास जी, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार सर। सर मेरा ये क्वेश्चन, आपने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, अपनी APS लाइट जो अभी बात कर रहे थे, तो यू हैव टॉक्ड अबाउट वाटर रेपेलेंसी फीचर इन दिस प्रोडक्ट। ये करेक्ट सर। तो आपने बोला इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन वगैरह हम यूज करते हैं, तो अगर उसको नहीं यूज करना तो इसको यूज करेंगे तो वही प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं जो उसमें मिलती हैं। ये सर। और सिलिकॉन कुछ पीरियड के बाद उसकी इवेपोरेशन हो जाती है, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। ये सर, तो मेरा क्वेश्चन सर, हाँ सर आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन सर ये है, अगर हम सिलिकॉन यूज करते हैं, अगर उसको बंद करना हो, आपका प्रोडक्ट यूज करना हो, तो उसके कंपैरेटिव इसकी परफॉर्मेंस कितने टाइम तक रहती है, या फीचर इसका सरफेस के ऊपर कब तक रहता है इसका, तो ये थोड़ा सा मेरे को क्लियर कर दीजिए सर प्लीज। इसमें क्या है सर, देखिए मैं आपको बताऊं, किसी भी प्रोडक्ट में एक्चुअली कुछ ऐसा मैजिक नहीं है ना, हमने कुछ ऐसा उसमें डाला है, बट क्या रहता है, जैसे सिलिकॉन एडिटिव की बात करें, वो लाइट होता है, उसका स्पेसिफिसिटी कम होता है, वो सरफेस पे आ जाता है, इसलिए वो जल्दी वॉश आउट हो जाता है। उसका इफेक्ट तो अच्छा रहता है, नो डाउट, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है ऐसा, अभी तक सब कस्टमर यूज ही करते हैं, बट उसमें क्या है, सरफेस पे आने की वजह से उसका वॉश आउट जल्दी होता है, इसलिए उसकी थोड़ी लाइफ कम हो जाती है। ये क्या है, सरफेस ट्रीटेड फिलर है, इसलिए मैट्रिक्स में रहता है, वो पेंट के साथ में अंदर रहता है, जब तक आपका कोटिंग रहेगा तब तक वो उसका इफेक्ट रहेगा। रफली मुझे लग रहा है 8 to 10 ईयर्स तक कोई इफेक्ट मतलब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जब तक कोटिंग रहता है उसमें सर इफेक्ट रहेगा।
क्योंकि वो फिलर मैट्रिक्स में है, कुछ पे इश्यू नहीं रहता है इसका। राइट सर, ये तो सर इसकी यूटिलाइजेशन के लिए बताया आपने भी, इसका मतलब अगर ये सरफेस के ऊपर नहीं आता इसलिए ये इसमें फीचर रहता है। एक चीज और पूछूंगा, जैसे कुछ उसकी परसेंटेज या सिलिकॉन की अगर उतना यूज करते हैं तो हमें बीडिंग इफेक्ट मिलता है, लोटस इफेक्ट मिलता है, तो इसका कितना परसेंटेज डालना पड़ेगा, हमें कितनी डोजेज डालनी पड़ेगी ताकि हमें सेम लोटस और लोटस इफेक्ट मिल सके वैसा जैसे उसमें देखिए मिलता है सर, सिलिकॉन? अभी जैसे सर ने भी बताया और भी हमारा जो सजेशन है, हम लोग बोलते हैं करीब 7 to 8% तक, 6 to 8% तक डालिए, आपको वाटर रिप्लेंस मिलेगा। अगर आपको 5% तक डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अच्छा 5% तक, हाँ 5% में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, और अगर बहुत ज्यादा लोटस इफेक्ट चाहिए तो आप थोड़ा डोसेस बढ़ा सकते हो या फिर कॉम्बिनेशन में डाल सकते हो अगर बहुत ही ज्यादा आपको मतलब लोटस चाहिए तो। नहीं तो सर जैसे यूज करते हैं 5% यूज करते हैं, 5-6% आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है सर कोई? मनीष जी। हाँ जी गौरव जी बोलिए। हाँ मनीष जी, मैं डॉक्टर बंसल की परमिशन से एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, अगर डॉक्टर बंसल थोड़ा परमिशन दे तो। नहीं बोलिए ना सर। अभी डॉक्टर बंसल से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो डेंसिटी एंड कंटामिनेशन से रिलेटेड था, कि डिफरेंट प्रोडक्ट की डेंसिटी और कंटामिनेशन से हम उसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। उस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर आप परमिट करो तो मैं देना चाहूंगा। नहीं परमिशन क्या सर, आप अच्छा हमको भी और कुछ नया जानने को मिलेगा उसमें तो कुछ। एक्चुअली नॉर्मली जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका हो सकता है कि केमिकल फॉर्मुलेशन एक जैसा दिखाई पड़े, पर जब वो अपना क्रिस्टल फॉर्म करता है तो एक यूनिट सेल फॉर्म करता है जिसको हम प्रोडक्ट की लैटिस बोलते हैं। वो उस लैटिस के जनरली जो है वो 14 तरीके की लैटिस होती है, जिसके साथ में वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है। उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर बेस्ड उनका मास और उनका वॉल्यूम निकाला जाता है, क्योंकि डेंसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो डेंसिटी D = m/v होता है। तो मास बाई वॉल्यूम से निकालते हैं, और वॉल्यूम हमेशा आइडेंटिफाई होता है क्रिस्टल लैटिस से, क्योंकि एक से ज्यादा क्रिस्टल लैटिस मिल करके अपनी वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं। तो अगर किसी के प्रोडक्ट में कंटामिनेशन होगा तो डेफिनेटली उसका क्रिस्टल लैटिस अलग होगा, क्योंकि कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स के क्रिस्टल लैटिस जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट से मैच करे, और वो केमिकली आपकी डेंसिटी में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालेगा। सो अगर कंटामिनेटेड है तो डेंसिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट जरूर आएगा। Dr. Gaurav, you meant to say we can correlate this density with the contamination? Yes, you can correlate until unless that is a very rare case that your contamination is having the same crystal lattice. Okay. बट गौरव सर उसमें मैक्सिमम केस में क्या होता है, मिनरल में आप देखोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जैसे कैल्साइट की देखें, कैल्शियम कार्बोनेट की 2.7 के आसपास होता है, टाल का भी उसी रेंज में होता है, सिलिका का भी उसी रेंज में होता है, डोलोमाइट का भी उसी रेंज में होता है। मैक्सिमम जो लोग मिक्सिंग करते हैं वो एक्चुअल में सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम रेंज में रहता है। सर मैंने इसीलिए बोला ना कि आपका अगर क्रिस्टल लैटिस उस फॉर्म में होगा तो वॉल्यूम उतना ही जनरेट होगा, तो मास बाई वॉल्यूम जब आप करोगे तो डेंसिटी आसपास ही निकलेगी। सो जो लोग मिक्सिंग करते हैं किसी भी चीज की किसी दूसरे में, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी का प्रोडक्ट डाला जाए। डेफिनेटली सर, अदरवाइज ये ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा कि किसी ने उसके अंदर मिक्सिंग की हुई है। जैसे वो रंजीत सर ने पूछा TiO2 में जनरली क्या होता है, बेरियम सल्फेट लोग, इसलिए तो टिटेनियम में बेरियम सल्फेट ही डाल रहे हैं करके। हाँ रंजीत सर ने बोला क्योंकि उसका स्पेसिफिक सेम रहता है, सेम रहता है और ब्राइटनेस भी अच्छा रहता है, वाइटनेस। तो लास्ट में केस यही बचता है, अगर आपको चेक करना है तो आप फिर उसके अंदर जो उनका केमिकल रिएक्शन टेस्टिंग का मेथड है उस पे जाइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं क्योंकि टाइम रनिंग है। अनमोल खरत जी का क्रोमाफ्लो इंडस्ट्री से, क्रोमाफ्लो से, बोलिए सर। अनमोल जी, अमोल जी क्रोमाफ्लो। अमोल, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, बस मजा में। सर ये था कि हम लोग कलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड दिस इज स्पेशली इन आपसे जानना चाहता हूँ कि हमें वाटर बेस्ड कलर बनाना है एज सॉल्व यूनिवर्सल कलर है। तो उसमें एक दिक्कत है कि हमारा जो ओपेसिटी है, ड्राई ओपेसिटी आफ्टर पेंट एप्लीकेशन का, वो हमें इम्प्रूव करना है। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ?
देखिए सर, उसमें क्या होता है, अगर ग्लॉस का इश्यू नहीं है तो आप कैल्साइन के लिए यूज कर सकते हैं वाटर बेस में, ना क्योंकि ना ना, ये यूनिवर्सल है, तो सर जी ये इनेमल में अच्छा, भी जाएगा, और इनेमल का ओपेसिटी कुछ नहीं, ऐसा है सर जी कि इनेमल का ओपेसिटी कुछ हैम्पर नहीं होना चाहिए। ओनली वी हैव टू इम्प्रूव द ओपेसिटी ऑफ वाटर बेस, water base, and without TiO2 containing water base paint. When we added colorant approximately for the mass tone, then we have to improve our opacity of that system. देखिए सर, अगर TiO2 नहीं होगा तो ओपेसिटी, आप जो बोल रहे हो मेरे को जो समझ में आया, जनरली क्या रहता है, कलर जो रहता है उसमें व्हाइट फिलर क्यों यूज नहीं कर सकते, उसका कलर का टोन कम कर देता है। जैसे जेट ब्लैक है, जेट ब्लैक में हम व्हाइट कोई भी फिलर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उसकी जेटनेस कम हो जाएगी। उस केस में क्या है, ब्लैंक फिक जो आता है प्रेसिपिट बेरियम सल्फेट, वो आप ऐड कर सकते हो, वो आपका जो पिगमेंट है उसका डिस्पर्सन इंप्रूव करेगा, और वो खुद का कोई कलर उसमें नहीं देता है, उसमें ओपेसिटी भी इंप्रूव करेगा और ग्लॉस भी इंप्रूव करेगा। लेकिन सर जी ब्लैंक फिक्स से हमारा ड्राई ओपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। We already tried with the blank fix because of that I'm just yes sir, हाइड्रस के लिए आपने यूज किया? Yes. The issue is we are getting opacity in wet condition, but after drying after dry 2-3 days we are getting less opacity in for the mass tone. एक बार सर आपका फॉर्मुलेशन समझना पड़ेगा एक्चुअल में, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम बोल रहे हो ना, एक तरह से ट्रांसपेरेंट है आपका सिस्टम। ना ट्रांसपेरेंट नहीं, यूनिवर्सल कलरेंट है, मशीन कलरेंट। तो उसमें व्हाइट फिलर नहीं डाल सकते? ना वो अगर हम लोग डाल देते हैं तो हमारा इनेमल डिस्टर्ब हो जाता है। एक बार सर अपन पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, एक्चुअली तो डिटेल में समझना पड़ेगा मेरे को भी एक्चुअल में अभी, क्योंकि जनरली ओपेसिटी के लिए वाटर बेस का ओपेसिटी है वो तो ये फिलर से आ जाता है, बट आपका अलग सिस्टम है। Actually, yes, we already actually tried with the blank fix and all this, so because of that I thought we will get good suggestion from you. सर एक बार अपन बात कर लेंगे, मैं भी देख लेता हूँ एक बार और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, अभी AK श्रीवास्तव जी आप पूछना चाहेंगे कुछ? AK श्रीवास्तव जी अपना अनम्यूट कीजिए एक बार प्लीज। हाँ जी AK श्रीवास्तव जी। हाँ जी, बोलिए सर। ओके सर, हाँ, एक्चुअली आई वांट टू आस्क विद डॉक्टर साहब, is there any mineral or aggregates that will help in soundproofing in auditorium? हेलो सर, कोई मिनरल ऐसा है जो ऑडिटोरियम में साउंड प्रूफ करते, कुछ इस तरह का सिस्टम कुछ है क्या? हाँ, अगर हम सिलिशियस एग्रीगेट्स डालते हैं, जैसे टेक्सचर थिकनेस उसकी 2 mm तक रखते हैं ना, इन दैट केस क्या इस तरह का कुछ है इनके पास, कुछ सिलिशियस एग्रीगेट्स जिसको हम यूज करें और साउंड प्रूफिंग टू सम एक्सटेंट अगर रिड्यूस कर दे? हेलो, हाँ जी, क्लियर नहीं आ रही साउंड। डॉक्टर साहब बताएंगे बात, अनिल बंसल जी। डॉक्टर अनिल बंसल, शायद उनका नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क, ओके, आई शैल टॉक टू हिम पर्सनली, नो प्रॉब्लम। हाँ, कर लीजिएगा। ओके मनीष जी, ओके सर, आई शैल। ओके सर, मैं एक बार सबका धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को अब कंक्लूजन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। एंड I really thankful to Dr. Anil Bansal and our sponsor for today, Shriram Minerals, Jayesh भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। APS Minerals का भी धन्यवाद जिन्होंने आज का को स्पॉन्सरशिप में भाग लिया हमारे साथ। हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं डेली। आपको मैं बता दूं, ये हमारी 22nd वेबिनार थी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, और 23rd अभी आने वाली है, कल होगी वो। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आज इनका, हमारे डॉक्टर साहब का कुछ रह गया है तो उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी कंप्लीट हो गया तो मैं भी डॉक्टर साहब से बात करके, तो कल हम लोग दूसरे प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ डॉक्टर साहब अभी और भी इनकी स्लाइड्स हैं जो रह गई हैं, कल हम मिनरल पे दोबारा बात करने वाले हैं।
जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो चैट रूम में अपना नंबर दे सकते हैं, हम उनको अपने ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। अभी हम लोगों ने, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने एक कंसल्टेंट का पूरा एक ग्रुप बनाया है और हम लोग पूरी कंसल्टेंट्स की टीम बना रहे हैं। पेंट विजन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और हम लोग पेंट इंडस्ट्री को बेटर तरीके से और हेल्प कर सकें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री के, वो अगर किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहेंगे तो हम लोग उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये पेंट विजन का जो परिवार है ये काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है आप लोगों की ब्लेसिंग से। तो आप हमारा साथ देते रहें, बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर। तो अभी आप मीटिंग को मैं बस मनीष जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्या था, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। सर श्रीवास्तव जी कह रहे हैं मैं बंसल साहब से डायरेक्ट फोन करके पूछ लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक। तो आप आ गए हैं तो सर मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, और एक जो हमारी परंपरा है एक अप्लॉज बनता है सर डॉक्टर बंसल के लिए। मनीष जी वो लास्ट क्वेश्चन का एक आंसर बोल दीजिए ना, थोड़ा हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? थैंक यू। ये लास्ट जो क्वेश्चन पूछा ना श्रीवास्तव जी ने, श्रीवास्तव जी हैं क्या? कि हम लोगों को भी समझ में आ जाएगा, पर्सनल में चले गया तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। ओके ओके मैं ट्राई करता हूँ। अनिल एके श्रीवास्तव जी, साउंड प्रूफ फिलर। हाँ यस यस यस, जैसे एक मिनट सर मैं देखता हूँ तो है क्या इसमें। और ऑडिटोरियम। हाँ जी श्रीवास्तव जी अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे सर? मैं रिपीट करता हूँ डॉक्टर साहब, वो पूछ रहे थे कि साउंड प्रूफ कोई ऐसा मिनरल आता है क्या ऑडिटोरियम के लिए? ये जैसे बताया ना अपना वर्मिकुलाइट, ये भी साउंड प्रूफ रहता है और चेक के साउंड प्रूफ का काम करता है। एक्यूस्टिक कौन सा सर, एक बार दोबारा रिपीट करना डॉक्टर साहब। वर्मिकुलाइट जो भी है, वर्मिकुलाइट और एक परलाइट है, दोनों जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, दे वर्क एज ए एक्यूस्टिक, मतलब वो साउंड को रोकते हैं, वो एक इधर से उधर नहीं जाने देते हैं। और जैसे अगर कई बार एस्बेस्टोस सर अभी बैन है, एक्चुअली फाइब्रस होता है तो इसलिए उसको अभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी काम करता तो है। हाँ काम करता है सर। और दूसरा एक सबसे बड़ा एग्जांपल सर, मनीष सर देखा होगा, बड़ी बड़ी होटलों में जो पाइप होता है ना पानी का, उसमें भी जो पाइप होता है वो एक्यूस्टिक पाइप होते हैं, उनमें भी बेरियम सल्फेट जाता है। नहीं तो देखा है ना पानी नाली में आता है, गड़र गड़र करके नीचे आता है। हाँ वो एक्यूस्टिक ही रहते हैं, एक्यूस्टिक पाइप बोलते हैं, जिनमें बेरियम सल्फेट भी रहता है, वर्मिकुलाइट रहता है, और सर ने बोला जो वो भी यूज करते हैं, एस्बेस्टोस भी यूज होता है, कई सारे फिलर उसमें यूज होते हैं। ओके सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। एंड अमोल जी एक बार दोबारा कुछ पूछना चाह रहे हैं। अमोल जी बोलिए। अमोल जी बोलिए। नहीं सॉरी सर, आपसे बाद में बात कर लेता हूँ। ओके सर, ओके सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। वी विल मीट टुमारो, दोबारा मिलेंगे कल इसी टाइम इसी समय। सब तब तक के लिए नमस्कार, सबको धन्यवाद। थैंक यू जयेश भाई, आपने हमारे को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। आपको भी सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और स्पेशली मैं जयेश भाई की तरफ से फिर सबको इनवाइट करना चाहूंगा, किसी ने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है और काऊ डंग से बने हुए सामान को अगर खरीदना है या उसको यूज करना है तो वो व्हाइट सी है, व्हाइट सी है, उसका भी आनंद लेना है तो वो जयेश भाई से कांटेक्ट करें। मैं ग्रुप के अंदर मेरा नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, सब लोगों के लिए। ओके ओके, या थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके बाय बाय।